Okay, once again, good evening, everyone. Welcome to the 7 Days National Training Program that is conducted by Agri Youth Story. We are thrilled to announce you and join us. Our session will provide key insights, practical knowledge, and guidance from industry experts that will help you to navigate the agricultural sector efficiency. Okay, so today's topic is hydroponics technology, that is basically soil-less future, and we are honored to have Mr. Chandan Kumar sir. Founder and CEO of Farming Wave, is our speaker for today's session. Mr. Chandan Kumar sir has a great expertise in hydroponics cultivation, and you will help you all to build a successful hydroponics business. Shall we start the session? Yes, sure. हेलो। Yes. हाँ जी। अभी अपना सेशन चालू होगा जिसमें इंट्रोडक्टरी हमारा विजीत राठौर है जो कि हमारे यहाँ पे बीडीएम बेसिक्स हम वहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, फिर हाई लेवल का जो चीज़ें हैं जैसे ग्रोइंग का हो गया या इसके अलावा आपका फाइनेंस हो गया कि कैसे कितना में सेटअप होता है, क्या होता है, एक तरीके से पूरा का पूरा एक जो ये इंडस्ट्रीज है हाइड्रोपोनिक्स का, बिल्कुल स्टार्ट टू आपका हार्वेस्ट वहाँ तक का पूरी आपको नॉलेज मिल जाएगी इस तरीके से। तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जो अभिजीत अभी प्रेजेंट कर रहा है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए उसको, है ना। कोई डाउट डाउट हो तो आप उसमें भी बीच में हम एक सेशन रखते हैं थोड़ा सा कि अगर उसमें भी थोड़ा डाउट हो हम ऐसा करते हैं कि एक सेशन मतलब एक जो सेक्शन है वो कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बेसिक मीडियम एडवांस सारा चीज हम इस तरीके से ग्रैब कर लेंगे। So hi, good evening everyone. Good evening. Yeah, hi. So I'm Abhijit Rathod. I'm Business Development Manager in Farming Wave. So today I will be helping you with this workshop, right? So today we will discuss regarding various different aspects like what is basically a hydroponics, then what are different systems in hydroponics based on like the systems. Then we will discuss different substrates used in it. Then we will have a look over to a general steps in hydroponic system, and we will discuss two major crop cycles. First one for leafy crops, considering lettuce as a priority, and in fruity vegetables like bell peppers, right? Till this page, we have covered every like cropping scenario. Then we will discuss in a brief regarding the hydroponic nutrient solutions and efficiency. And from this, the actual like commercial part starts. What exactly a hydroponic polyhouse, or what are different types of polyhouses, which crops should be cultivated in which polyhouse, these things. Then we will discuss each and every equipment and accessories used in hydroponic system. And then we will discuss regarding what is the benefits of hydroponics and how as in Farming Wave will help you in your entire journey. Right? So can anybody please unmute the mic and let me know like what exactly a plant requires to grow? सर हिंदी में बोलिए प्लीज। ओके डेफिनेटली राइट। सो क्या आप में से कोई एक अनम्यूट करके बता सकता है कि प्लांट को एक्चुअली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए? So the first and foremost water, is nutrients, soil, water, Macronutrients, micronutrients, nutrients. sunlight. Right, exactly. Soil. Plant required sunlight, nutrient, then water to grow. But it is not really important that कि उसको सिर्फ सॉइल की भी रिक्वायरमेंट होगी ही ग्रोथ के लिए, राइट? हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स यूज करते हैं, जैसे कोकोपीट हो गया, लिका बॉल्स हो गया, ये सब चीजें यूज करके हम प्लांट को ग्रो करेंगे, राइट? अभी बात करते हैं एक साइंटिफिक डेफिनेशन की। तो उसके पहले हम ये वर्ड है इसको दो में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट वन इज हाइड्रो एंड सेकंड वन इज पोनिक्स, राइट? सो हाइड्रो मीन्स होता है पानी और पोनिक्स मीन्स होता है वर्क और लाइक hydroponic nutrient or delivering nutrient to the root of the plant using water as a medium. पानी के थ्रू हम न्यूट्रिएंट को डिलीवर करते हैं रूट्स के पास प्लांट के। ये हो गया हाइड्रोपोनिक का डेफिनेशन, राइट? अब एक्चुअल चीज होगी कि क्या जरूरत है हाइड्रोपोनिक्स की।
सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे तो पहले सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। जो मेजर इशू हम आजकल के एग्रीकल्चर सिस्टम में फेस कर रहे हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी ड्रॉप होती जाती है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। हेवी केमिकल्स और हेवी मेटल सॉइल में डिपॉजिट होते जा रहे हैं, जिससे फर्टिलिटी यूनिफॉर्म नहीं है। कई जगह पे फर्टिलिटी का टोटल लॉस हो जाता है, राइट। प्लस वाटर का जो इशू आता है हाइड्रोपोनिक्स में कि लाइक नॉर्मल एग्रीकल्चर में कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है वाटर की, वेयर हाइड्रोपोनिक्स में हम सिर्फ 1/10 वाटर यूज करेंगे एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, राइट। देन हम क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग है, कल्टीवेशन है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसमें हम पॉली हाउस लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो कि आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को, जिससे कि हमें प्लांट पे कोई स्ट्रेस का जो पैरामीटर है वो काफी कम रहता है और पेस्ट और डिसीजेस बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं। देन दूसरे बहुत सारे वेरियस इश्यूज है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का अवेलमेंट होना। नॉर्मल एग्रीकल्चर में ये बहुत मेजर सेटबैक आ जाता है। देन प्राइसिंग्स का इशू आता है, स्टोरेज से रिलेटेड इशू है। देन लेबर्स का रिक्वायरमेंट, ये बहुत मेजर इशू आ जाता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में। वेयर एज हाइड्रोपोनिक्स में अगर हम पर एकड़ की बात करें तो हमें 4 to 5 लेबर्स आर मोर देन इनफ टू वर्क इन 1 acre ऑफ हाइड्रोपोनिक फार्म। ऑल्सो ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की, लाइक ये 1/10 वाटर यूज करेंगे हम, 10 times So can you please repeat one? ओके। वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है प्लांट्स की इन हाइड्रोपोनिक सेक्टर, इट 1/10 ऑफ वाटर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, राइट। देन जो यील्ड पर स्क्वायर मीटर है वो हमारा 10 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल फार्मिंग, क्योंकि हम क्लोज इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। सो हमारी प्लांटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर देखें तो, राइट। देन हाइड्रोपोनिक्स का जो मार्केट है ये 14% CAGR रेट से ग्रो हो रहा है। अगर हम अभी यूएसए की बात करें तो 25,000 हेक्टर्स विच इज अराउंड 29 बिलियन का हाइड्रोपोनिक मार्केट है, हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन से रिलेटेड, राइट। तो अभी हम यहाँ से, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब यहाँ से हम बेसिक्स देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स की कि क्या क्या डिफरेंट सिस्टम्स है, राइट। सो बिफोर वी स्टेप इनटू दिस, अगर आपको कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपको आंसर्स दूंगा। अलोंग विद दैट एग्रोनॉमिकल पार्ट के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स चंदन सर आपको हेल्प करेंगे। So what is CAGR? ओके, CAGR एक नॉर्मल टर्म्स में अगर हम कहें तो CAGR एक ग्रोथ रेट होता है, एनुअल ग्रोथ रेट, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रोथ रेट होगा। जैसे स्टील इंडस्ट्री आजकल बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो इसको जो काउंट करते हैं हम, ये CAGR परसेंटेज में काउंट करते हैं। सो ये हर साल 14% से इंक्रीज होते जा रहा है। Okay, sir. थैंक यू। सो लेट्स बिगिन विद क्या क्या डिफरेंट सिस्टम्स होती है हाइड्रोपोनिक्स में, राइट। तो वेरी फर्स्ट सिस्टम विल बी एनएफटी सिस्टम, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। तो एनएफटी सिस्टम में क्या होता है कि एक ग्रो ट्रे होगा, बेसिकली एक जो कि 3 से 4 इंच का साइज होगी उसकी, ओके। सो ये ग्रो ट्रे, राइट। ऑल्सो प्लीज नोट दैट कि ये टैंक प्लांट एनएफटी चैनल्स के जस्ट नीचे रहना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम इसको फार्म में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, राइट। अभी बात करते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है, राइट। सो इसमें क्या होगा, एक पंप होगा। वो पंप क्या करेगा, ये जो ब्लू कलर थिंग है ये नॉर्मल वाटर नहीं है, इसमें हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, बेसिकली हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट रेसिपी ऐड की है। तो ये हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट रेसिपी जब हम पंप को ऑन करते हैं तो एनएफटी चैनल के एक एंड में जाके डिलीवर होती है, ओके। एंड अपोजिट एंड से ये डिस्कार्ड होती है अगेन मेन टैंक में। सो दिस इज हाउ ये रीसर्कुलेटिंग सिस्टम है, कि पानी को रीयूज किया जाता है कंटिन्यूअसली साइक्लिक वे में, जिसमें कि हमने न्यूट्रिएंट ऐड किया है। अब बात आती है कि हम इसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो साइज होता है एनएफटी चैनल का, ये 3 से 4 इंच का है। तो 3 से 4 इंच का अगर साइज है तो हम इसमें सिर्फ वही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जिसके रूट्स इसमें फिट हो पाए, जैसे कि ग्रीन लेटेस, रेड लेटेस, रोमेन, केल, पार्सले, एरिगुला, बेसिल, ये सब क्रॉप्स, जो कि 60 मैक्सिमम 60 to 80 डेज का लाइफ साइकिल इनका होता है। नाउ आप में से कोई सोच रहे होंगे कि हम बड़े क्रॉप्स इसमें क्यों नहीं ग्रो करते, राइट।
तो इसका एक ही सिंपल रीजन है, हम इसमें बड़े क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या होता है कि रूट्स काफी ज्यादा ओवर डेवलप हो जाती है, जिससे कि ये जो रिसर्कुलेशन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें समहाउ रूट्स को बार बार ओपन करके कट करना पड़ेगा, जो कि प्लांट पे एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है, जिस वजह से हम इसमें सिर्फ स्मॉल रूटेड क्रॉप्स ही ग्रो करते हैं। देन एक दूसरी सिस्टम है जो कि फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम या ईबीबी एंड फ्लो सिस्टम हम इसको कहते हैं। ये भी रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि ये जो नेट पॉट्स काइंड ऑफ एक फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये फ्लावर पॉट लाइक नेट पॉट स्ट्रक्चर्स है, और एक ऊपर फिल्ड ट्रे होता है, राइट, एंड एक रिजर्वायर और टैंक होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें नॉर्मल पंप की जगह एक टाइमर इमर्स पंप होगी। ओके, ये टाइमर इमर्स पंप होगी, मतलब कि ये कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे हर 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी बंद होगी, इस वे में ये पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम से न्यूट्रिएंट को ऊपर डिलीवर करेगी। और ये जो ड्रेन ट्यूब है ये इसको फ्लड ड्रेन ऑफ करके फिल्ड ट्रे को एम्प्टी कर देगा। तो इसमें फर्स्ट केस हम देखते हैं कि प्लांट को कैसे ऑक्सीजन मिल रहा है और कैसे मैनेज हो रहा है, प्लांट ग्रो कैसे हो रहा है। तो सपोज रिजर्वायर से सारा न्यूट्रिएंट फिल्ड ट्रे में ट्रांसफर हो, को इस डायग्राम में दिख रहा है, सिमिलर केस है। अब यहाँ पे है कि रूट्स न्यूट्रिएंट के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो इस टाइम पे रूट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट जैसे ही ड्रेन ट्यूब ऑन हो जाता है तो ये जो एंटायर न्यूट्रिएंट है फिल्ड ट्रे में का, ये चला जाएगा फिर से रिजर्वायर में, और इस टाइम पे ये जो एम्प्टी एयर स्पेस दिख रही है आपको, व्हाइट स्पेस, ये ज्यादा होगी और न्यूट्रिएंट की लेवल बहुत कम होगी। तो इस टाइम पे रूट्स जो है ये फ्रेश एयर के कांटेक्ट में आएंगे। तो इस वे में इस सिस्टम में रूट्स ऑक्सीजन अलोंग विथ करते हैं। इसमें हम मीडियम रूटेड टू स्मॉल रूटेड क्रॉप्स ग्रो करते हैं। देन एक वाइडली यूज की जाने वाली कमर्शियल स्केल में एक सिस्टम है जो कि है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो हाइड्रोपोनिक्स में बहुत लार्ज स्केल पे यूज की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक रिजर्वायर होगा या टैंक होगा, जैसे ही हम ये वॉल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वॉल्स हम ओपन करते हैं तो न्यूट्रिएंट जो है ये मेन लाइन से आते हुए लैटरल लाइन में जाएगा। ओके, ये मेन लाइन है, यहाँ से लैटरल लाइंस है, ये लैटरल लाइंस में जाएगा। मेन लाइन का साइज 1 इंच होता है जनरली, और लैटरल लाइन ½ इंच की होती है। तो न्यूट्रिएंट ऐसे ट्रांसफर होगा। और ये जो ब्लैक कलर की थिंग आपको दिख रही है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये ड्रिप एरोज है और पीसीजी ड्रिपर है, जिसके मैं फोटोज, एक्चुअल रियल फोटोज आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसमें जो सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं वो कोकोपीट होता है। हम सबस्ट्रेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट सबस्ट्रेट्स है रादर देन सॉइल जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये नॉन सर्कुलेटिंग सिस्टम होगा। ये सिस्टम ज्यादातर इसलिए अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी कम है, और कंसिडरिंग इंडियन कंडीशंस, पावर आउटेज अगर होता है तो कम से कम 2 से 3 दिन का पावर आउटेज हो जाता है ट्रिपल फेज इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर होने में। तो उस टाइम पे अगर हमें डीजल जनरेटर रन करना है तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर हमारे पास हो तो हमें हार्डली 3 to 4 आवर्स का डीजल जनरेटर लगेगा मैक्सिमम, वेरएज बाकी सिस्टम्स में हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। प्लस इसके रॉ मटेरियल्स हमें इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे फॉर ड्रिप्स, वेरएज बाकी सिस्टम के लिए जैसे एयर स्टोन्स लगते हैं, ये सब चीजें थोड़ा मिलना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है टीयर 3 सिटीज में। अभी ड्रिप इरिगेशन में हम स्मॉल रूटेड क्रॉप, मीडियम रूटेड क्रॉप से लार्ज रूटेड क्रॉप, जैसे कि लेटेस से लेके सीडलेस क्यूकम्बर, बेल पेपर, चेरी टमाटो, स्ट्रॉबेरीज, ये सारे क्रॉप्स हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। अभी एक और सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, डीप वाटर कल्चर, DWC। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे एयर पंप, देन एयर स्टोन, प्लांट्स, एक फोम शीट। सो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम एयर पंप को ऑन करेंगे, जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है वो ये एयर पंप इनटेक करेगा एयर को, और एयर लाइन के एयर स्टोन में डिलीवर करेगा, राइट। यहाँ से एयर आई, एयर लाइन के थ्रू एयर स्टोन में गई। अभी जो एयर्स है ये एयर स्टोन के ऊपर एक छोटे छोटे तो उसके थ्रू वो एयर यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, वी कैन से बबल्स क्रिएट करते हैं वाटर के सरफेस में, हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट में, जिसके थ्रू ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट का बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है इस सिस्टम में। बट इस सिस्टम में 2-3 ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि क्रॉस कंटेमिनेशन, जिसकी वजह से ज्यादातर डीप वाटर कल्चर को कमर्शियली इंडिया में फिलहाल यूज नहीं किया जाता। अभी जो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो नेट पॉट्स या फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है।
तो हम अभी उन सबस्ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हम एक छोटा सा Q&A सेशन रखेंगे जिसमें आपको सिस्टम से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सबस्ट्रेट होता है क्ले एग्रीगेट, इसको हम लिका बॉल्स भी कहते हैं। तो क्ले एग्रीगेट का काम ये है कि ये एक्चुअल में क्ले को 1200 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट किया जाता है और कूल किया जाता है तो इस पे कुछ छोटे पोर्स बन जाते हैं। जो पोर्स जब न्यूट्रिएंट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं रूट्स के आसपास। क्ले बॉल्स या लिका बॉल्स ये पीएच न्यूट्रल है और इनमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो हमें सबसे बेस्ट हो जाता है कि हम जो भी हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट प्लांट्स को दे रहे हैं वो इनसे रिएक्ट नहीं होते। क्ले बॉल्स ज्यादातर एनएफटी सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। देन एक दूसरा सिस्टम है, दूसरे सबस्ट्रेट्स है दैट इज कॉयर और कोकोपिट। कोकोपिट के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इंडिया में कोकोपिट बहुत वाइडली यूज किया जाता है। कोकोपिट बेसिकली बनता है नारियल के बाहर के शेल से, आउटर मोस्ट ब्लास्टर से। तो कोकोपिट में कुछ कंपोजिशन होता है 7:3 का। 7 पार्ट होता है डस्ट और 3 पार्ट्स होते हैं चंक्स के। ये जो हुआ ये डस्ट और फाइबर्स ये 70% होगा और कुछ ½ इंच के चिप्स टाइप होंगे कोकोपिट के ही, जो कि कोकोनट का आउटर शेल से बनता है, वो 30% होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन इसका मेंटेन किया जाता है। और कोकोपिट का प्रोडक्शन, कोकोपिट को हम नारियल को बाहर का जो शेल है उसको रिमूव करेंगे, मल्टीपल टाइम वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है डायरेक्ट सनलाइट में और उसके बाद उसे यूज किया जाता है। देन ग्रो स्टोन्स जो है ये ग्लास के वेस्ट से बने हुए होते हैं। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरेशन काफी अच्छा रहता है एज कंपेयर टू राइस हल्स। राइस हल्स मतलब नारियल जो चावल के बाहर की शेल होती है उससे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्रो स्टोन्स की रहेगी, जो कि इंडस्ट्रियल ग्लास वेस्ट से बनाया जाता है। ऑल्सो इंडिया में या इंडिया से पहले बहुत सारी कंट्रीज में सैंड को बहुत पहले यूज किया जाता था एज अ सबस्ट्रेट जिसमें प्लांट को ग्रो किया जाए। बट सैंड में कुछ मल्टीपल इश्यूज आते थे, जैसे कि जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता था तो ये काफी हेवी हो जाता था टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन एंड ऑफ फार्म टू अनदर एंड। तो ड्यू टू दिस सैंड को ज्यादा यूज नहीं किया गया, प्लस स्टेरिलाइजेशन में काफी इश्यूज गए। वेयरएज हम कोकोपीट, लिका बॉल्स, ग्रो स्टोन्स या बाकी सारी चीजों को बहुत इजीली हाइड्रोजन पेरोक्साइड या मल्टीपल डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन केमिकल्स यूज करके हम इसको स्टेराइल कर सकते थे। बट सैंड में बहुत ज्यादा इश्यू आता था टू स्टेराइल इट। देन एक और सबस्ट्रेट यूज होता है परलाइट। परलाइट ये वॉल्केनिक रॉक से बनता है। जब इसको 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए वॉल्केनिक रॉक्स को, तो ये थर्मोकॉल बॉल की तरह लाइट वेट बन जाते हैं। तो परलाइट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और कई बार हम परलाइट को कोकोपिट के साथ भी मिक्स कर लेते हैं टू मेंटेन मोर एरेशन इनटू दैट पर्टिकुलर कोकोपिट। देन ग्रेवल्स जो है ये बहुत ही बेसिक चीज है, आप सभी ने ऑब्जर्व की होगी। जो अपने फिश टैंक्स होते हैं उसमें जो स्टोन्स है या फिर रिवर के बॉटम लेयर में जो रनिंग वाटर बॉडी है उसके निचले हिस्से में जो पत्थर होते हैं जो नियरली सर्कल होते हैं या स्पेरिकल होते हैं, वो कुछ नहीं तो वो बस ग्रेवल्स है। तो ग्रेवल्स वाटर लॉजिंग बिल्कुल नहीं करते क्योंकि ये नियरली स्पेरिकल है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर गैप्स रह जाती है जिसके वजह से जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। अभी यहाँ तक आपको जो भी डाउट्स है प्लीज हमें बताइएगा, सो हम आपके Q&As को क्लियर करते हैं और फिर इसके बाद हम बाकी की चीजों को डिस्कस करें। So please repeat EBB and flow system. ओके डेफिनेटली, श्योर। ईबीबी एंड फ्लो में दो सिनेरियोज होंगे। ओके, पहला सिनेरियो कि जब न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर में है और रिजर्वॉयर से फिल ट्रे में जा रहा है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, सिमिलर वे। ओके, सेम ये फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस होता है जब न्यूट्रिएंट फिल ट्रे में से रिजर्वॉयर में चला जाता है, अपोजिट। ओके, ड्रेन हो रहा है, तो ये सेकंड केस होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या है, जो हमारी पंप है ये नॉर्मल पंप ना होते हुए टाइमर इमर्स पंप होगी। मतलब कि ये कुछ देर के लिए चलेगी, फिर बंद होगी, फिर वापस से स्टार्ट होगी। सो दिस इज द टाइमर इमर्स पंप। तो इसमें क्या होगा, सपोज जैसे ही टाइमर ऑन हुआ, फर्स्ट केस हम अभी इमेजिन करेंगे, टाइमर ऑन हुआ, न्यूट्रिएंट हमारा रिजर्वॉयर से फिल ट्रे में गया और जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है ऐसा सिमिलर वे में दिख रहा है। ओके, सेम केस होगा। अब यहाँ पे जो रूट्स है प्लांट के,
ये अभी न्यूट्रिएंट के कांटेक्ट में ज्यादा है। तो अभी प्लांट के रूट्स न्यूट्रिएंट को अपटेक करेंगे, वेरस प्लांट की ग्रोथ के लिए तो ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट होता ही है। तो उसको मीटअप करने के लिए क्या होता है कि ये जो ड्रेन ट्यूब है, ड्रेन ट्यूब ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर का कुछ कवर इस पे लगा हुआ है, सो ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा और ड्रेन ट्यूब से जो न्यूट्रिएंट है फिल ट्रे में ये नीचे चला जाएगा रिजर्वोयर में। और इस टाइम पे क्या होगा, ये जो आपका वाटर लेवल दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का, ये ड्रॉप हो जाएगा और ये कुछ इतनी लेवल पे आ जाएगा, इस लेवल तक। इन शॉर्ट फ्रेश एयर जो व्हाइट कंटेंट आपको दिख रहा है ये ज्यादा होगा और न्यूट्रिएंट कम होगा। सो इस टाइम पे रूट्स फ्रेश एयर के कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे और दिस इज हाउ प्लांट विल अपटेक द फ्रेश ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। सो एक टाइमर इमर्स पंप और ड्रेन ट्यूब की वजह से हम ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। इसलिए हम अभी अगर स्मॉल आपको कोई डाउट रूट है तो बताइए। स्मॉल रूट हाँ जी, ओके। स्मॉल रूटेड प्लांट्स मतलब बेसिकली वो प्लांट हो गए जिनका लाइफ साइकिल छोटा है और जिसकी रूट की साइज 2 से 3 इंच या ज्यादा से ज्यादा 4 इंच तक की होती है। इसमें ज्यादातर आते हैं लीफी सर, तो उसमें तो केवल यस, कैन यू रिपीट? उसमें सर वेजिटेबल में सर कौन कौन वेजिटेबल, लिफी के वेजिटेबल आएंगे ओनली? हाँ जी, लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच आ गया, पालक, देन ग्रीन लेटस, रेड लेटस, रोमेन, पार्शले, एरिगुला, बेसिल, ये सब क्रॉप्स आ गए। हर्ब्स और लीफी क्रॉप्स जिनका क्रॉप साइकिल 45 डेज से लेके 60 डेज तक मैक्सिमम हो सकता है, यही क्रॉप्स हम इसमें ग्रो करेंगे। और ये शॉर्ट साइकिल वाले क्रॉप्स जनरली हम एनएफटी सिस्टम में ग्रो करते हैं। सर इसमें तो फ्लावर भी ग्रो कर सकते हैं? हाँ जी, जो अगर वो फ्लावर्स का अगर रूट साइज छोटा है तो हम ऑब्वियसली इसको इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो वही सर एनुअल फ्लावर। राइट। वेयरएज अगर रूट साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे ये सर्कुलेशन चोक हो जाएगा, जिस वजह से हम Yes. थोड़ा अवॉइड करते हैं कि लार्ज रूटेड क्रॉप्स को इसमें सेट करें। ओके सर। वेयरएज इनफैक्ट हम इसमें स्ट्रॉबेरीज भी ग्रो कर सकते हैं एनएफटी में। ओके सर। सर Sir, मैं कुछ जानना चाहता था। elaborate the deep water Sure, that's culture system again. डीप वाटर कल्चर, Yes, sir. okay. So deep water, the only thing is that there are few major components like air pump, okay, then air stone, बेसिकली एक ऐसा पत्थर जिसके ऊपर बहुत सारे होल्स होंगे और जिसको एक एयर लाइन के थ्रू हम एयर पंप से कनेक्ट करते हैं। सो इसमें क्या होगा, जैसे ही एयर पंप से एयर पंप ऑन किया, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट में एयर है वो एयर पंप के थ्रू एयर लाइन से पास होते हुए एयर स्टोन पे जाएगी, ओके। एंड एयर स्टोन्स में कुछ होल्स होते हैं जिसके वजह से ये एयर जो है उस स्टोन्स के होल के थ्रू ऊपर सरफेस पे आना चाहेगा, जिससे कुछ बबल्स क्रिएट हो जाएंगे वाटर में। अब ये जो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं ये नथिंग बट द फ्रेश ऑक्सीजन जो कि न्यूट्रिएंट में डिसॉल्व हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट में फ्रेश ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया, इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का रेशियो जो है प्लांट के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेगा एज कंपेयर टू डिफरेंट सिस्टम्स। तो इसमें ऑक्सीजन हम एयर पंप के थ्रू फोर्सफुली इनटेक करवाते हैं एयर स्टोन में, और एयर स्टोन से कुछ बबल्स क्रिएट होंगे जो कि न्यूट्रिएंट के जो हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। Okay, sir. Thank you. And sir, what about the styrofoam sheet? Like, how does it work? ओके, बेसिकली क्या होता है, स्टाइरोफोम शीट एक नथिंग बट द इट्स सिमिलर टू द फोम शीट ओनली, ओके। इसका पर्पस ये होता है कि ये हम इसको न्यूट्रिएंट, ऑब्वियसली अगर हम कोई टैंक में न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है, सो ड्यू टू मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और स्टैग्नेंट वाटर होने की वजह से उसमें एल्गल ग्रोथ का रिस्क बढ़ जाता है। इसके लिए हम उसमें फोम शीट ऊपर से कवर करते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट न्यूट्रिएंट पे ना जाए। Okay, sir. Thank you. So, sir, it is white in color.
या इनफैक्ट स्टेफोम शीट जो है, स्टाइफोम शीट, ये मोस्टली एक्वापोनिक्स में भी बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे यूज किया जाता है। Okay, व्हाइट sir. कलर की शीट होती है, अराउंड वी कैन से हाफ इंच इज इट्स थिकनेस मैक्सिमम, वेयर एज इसमें डिफरेंट थिकनेस भी हम यूज कर सकते हैं। ओनली पर्पज इज कि हमें सनलाइट को डायरेक्टली न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पे नहीं जाने देना है। Okay, sir. राइट। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो यदि हमारे पास एनएफटी यूनिट है हाँ जी। और उसमें जो न्यूट्रिएंट के साथ सॉल्यूशन है वो इन आउट हो रहा है, उसमें यदि मैं लीफी वेजिटेबल ग्रो करता हूं तो वो मैं अपने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करूं, और क्या वो एक कितने साइकिल पे और कितनी क्वांटिटी किसी भी न्यूट्रिएंट की, सपोज माइक्रो न्यूट्रिएंट में ऐड करता हूं तो वो प्लांट क्योंकि अपटेक लेता रहेगा, तो क्या न्यूट्रिएंट में किसी तरह का लॉस होता है, या उसकी परिपूर्ति करने के लिए फिर हमें किस ऐड ऑन करना पड़ता है न्यूट्रिएंट? जैसे आपने कहा एग्जैक्टली राइट, करेक्ट बात है कि जैसे ही हम न्यूट्रिएंट सर्कुलेट कर रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट उसमें से प्लांट अपटेक कर लेगा, और जो हमारा न्यूट्रिएंट टैंक में रिटर्न आएगा उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू उतनी ड्रॉप हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को टॉप अप करने के लिए हमारे पास ऑटोमेशंस भी है, बट मैं ऑटोमेशन की जगह मैनुअल मेथड आपको समझाता हूँ। मैनुअली हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन हम टीडीएस में या ईसी में, ये दो फॉर्मेट्स में काउंट करते हैं। तो टीडीएस में अगर हम बात करें तो सपोज हम 800 का टीडीएस दे रहे थे, हमने प्लांट को सर्कुलेट किया 1 घंटा, न्यूट्रिएंट हमने प्रोवाइड किया एनएफटीज में, उसके बाद 1 घंटे बाद हमने वापस से चेक किया न्यूट्रिएंट लेवल क्या है जो टैंक में आने के बाद, अब वो 800 से 600 हो गई। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारे टैंक ए और टैंक बी बेसिकली जो हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट है उसका इक्वल क्वांटिटी वापस से टॉप अप करेंगे, ताकि टीडीएस लेवल हमारा वापस से 800 हो जाए। इसके लिए हम दो डिवाइस यूज करते हैं, एक टीडीएस मीटर और एक पीएच मीटर। मैं ये इसके भी फोटोज आपको आगे वाले स्लाइड्स में इक्विपमेंट एसेसरीज में दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसी चीज के लिए ऑटोमेशन भी है, जो कि हम खुद आपको सेटअप करके भी देते हैं। ओके, थैंक यू। Hello, sir. Which system mostly used in India? ओके, मोस्टली अगर हम क्रॉप के रूट साइज के बेसिस पे बात करें तो स्मॉल रूट क्रॉप्स के लिए एनएफटी सिस्टम इज वाइडली यूज्ड। ओके, और अगर हम लार्जर क्रॉप्स की बात करें जैसे बेल पेपर, चेरी टमाटो, सीडलेस क्यूकम्बर, जो कि एवरग्रीन क्रॉप्स है जिनका डिमांड बहुत ज्यादा है, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है, जो कि लार्जर साइकिल वाले क्रॉप्स होते हैं, जनरली 2 महीने से ऊपर, 3 महीने से ऊपर। इन सब क्रॉप्स को हम ड्रिप इरिगेशन मेथड में कोकोपीट यूज करते हुए ग्रो करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी भी कम होती है एज कंपेयर टू डिफरेंट सिस्टम्स। Okay, thank you, sir. Hi, one doubt I have. Yeah, So, definitely. so I just want to know, how does the substrate affect the growth of plant? And if it affects, how can we mitigate this problem? I mean, so yeah. Okay. So if I talk about specifically for NFT system, so in NFT, majority 2 substrates are used. The first one is that Lica balls, okay, that clay aggregates or clay balls. It is first only widely used. But क्या होता है कि in extreme summers, seeds required like sort of good moisture, or we can say root zone required maximum moisture. So at that time, what we do, rather than using Lica balls, क्योंकि Lica balls क्या होगा कि it's after all a clay pellet, right? So there will be some holes which will simply create a cooling nature or cooling environment near to root zone. But if I talk about osmosis cube, so osmosis cube has the tendency to hold the water. So in extreme summers, peak summers, we prefer osmosis cube or oasis cube, nothing but the similar foam like structure जो हमें bouquets में मिलता है. Same thing we will be using. Whereas in normal conditions हम clay aggregates use करते हैं, क्योंकि clay aggregates is a reusable thing, whereas osmosis cube reusable नहीं है. So depending on the particular crop हम substrate decide करते हैं. Also अगर large rooted crops है और हमें उसे grow करना है तो widely use किया जाता है coir, whereas foreign countries में rock wool use किया जाता है. The only thing is that उसमें water holding capacity थोड़ी ज्यादा है, but India में वो थोड़ा expensive है as compared to cocopeat. That's why India में widely cocopeat we prefer. All right, thanks for the Most welcome. So till this page, we have discussed कि क्या different, what are the different systems we have and what are different substrates we use, right? अभी हम बात करते हैं कि जनरल स्टेप्स क्या होती है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, कि एक एक्चुअल में फार्म हमें कैसे रन कराना चाहिए। अगर हमारे पास एक पॉली हाउस है
तो उसके बाद हम कैसे प्रोसेस स्टार्ट करें। वेयरएज पॉली हाउस बनाने के लिए जो पैरामीटर्स लेने हैं वो हम आगे चल के कुछ स्लाइड्स बाद डिस्कस करेंगे फॉर कमर्शियल पार्ट्स। तो बेसिक सबसे इनिशियल स्टेज होता है हमारा प्रिपरेशन। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज नथिंग बट द प्रिपरेशन। अब इसमें क्या होगा, हमें पहले तो क्रॉप सिलेक्ट करना होगा, राइट। अगर हमारे पास एनएफटी फार्म है या बेल पेपर के लिए कोकोपीट का फार्म है, सो हमें पहले क्रॉप सिलेक्ट करना है। देन वंस वी सिलेक्ट द क्रॉप, उसके लिए हमें कुछ वी कैन से कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टिंग द फार्म। देन जो सबस्ट्रेट्स विच वी आर यूजिंग, वी हैव टू डिसइंफेक्ट दोस सबस्ट्रेट्स। अब जैसे कि लिका बॉल्स हो गया, कोकोपीट हो गया, ये चीजें रीयूजेबल है, तो इसको हमें डिसइंफेक्ट करना जरूरी है ताकि प्रीवियस साइकिल से कोई कंटामिनेशन ना आए न्यू साइकिल में। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड 0.5 ml पर 1 लीटर ऑफ नॉर्मल वाटर हम ये यूज करते हैं, अलॉन्ग विद नीम ऑयल या डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस भी वी प्रेफर फॉर स्टेरिलाइजिंग द सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट स्टेरिलाइज हो गए, उसके बाद जो जर्मिनेशन ट्रेज है हम इन सबको भी स्टेरिलाइज करेंगे, फिर वी विल डू द सोइंग। ओके, अब सोइंग में हम क्या करते हैं कि कोकोपीट में सोइंग करना है या ऑस्मोसिस क्यूब में सोइंग करना है, ये हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। ओके, मोस्टली कोकोपीट। तो सपोज हमने कोकोपीट में सोइंग किया, उसके बाद क्या होता है, प्लांट को हमने 20-25 डेज, अगर हम लीचीज की बात करें तो 20 to 25 डेज लगते हैं इसे रेडी टू ट्रांसप्लांट होने में, मतलब कि इसके रूट की साइज 2 इंच तक पहुंचने के लिए, राइट। जैसे ही रूट की साइज इंक्रीज हो जाती है, हम इसको एनएफटी सिस्टम में प्लेस करेंगे, वेयरएज इसके पहले ये सिर्फ जर्मिनेशन ट्रे में रहे। ओके, फिर हमने एनएफटी में इसको ट्रांसप्लांट किया, फिर हमने इसकी ग्रोथ देखी। ग्रोथ फेज में, ग्रोइंग फेज में क्या होगा कि हम इसके न्यूट्रिएंट में कोई डेफिशिएंसीज आ रही है प्लांट में, वो चेक करेंगे। कोई इन्फेस्टेशन है तो हम उसको टैकल करेंगे यूजिंग वेरियस डिफरेंट एसओपीज। देन वी विल गो फॉर हार्वेस्टिंग एंड देन क्वालिटी एश्योरेंस करने के बाद वी अगेन मेंटेन द फार्म बाय क्लीनिंग इट एंड डिसइंफेक्टिंग द एंटायर फार्म, राइट। ये हो गए हमारे बेसिक स्टेप्स। अब हम 2 क्रॉप साइकिल्स डिस्कस कर लेते हैं जो मेजॉरिटीली इंडिया में कल्टीवेट किए जाते हैं। लीफी क्रॉप्स में आ गए लेटिस फैमिली, एंड वाइन क्रॉप्स में या फ्रूटी वेजिटेबल्स में वी विल डिस्कस रिगार्डिंग बेल पेपर्स, राइट। सो सपोज डे 0 में हमने सोइंग कर दी। ओके, सो उसके 3 से 5 दिन बाद हमें जर्मिनेशन मिलेगा उन सीड्स में। 3 से 5 दिन के जर्मिनेशन के बाद हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट है हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग से रेफर करें, सो जब हम व्हेन वी वर इन्फेंट्स और किड्स, सो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारा जो न्यूट्रिएंट अपटेक है या हमारा जो एपेटाइट है, हमारा डाइट है, वो काफी कम था। बट जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज होते गया, हमारा एपेटाइट, हमारा डाइट इंक्रीज होते गया। सिमिलर केस प्लांट्स में भी होता है। इनिशियली वो काफी कम एपेटाइट लेते हैं, काफी कम न्यूट्रिएंट लेंगे, सो हम टीडीएस को कम रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज करते हैं जब तक वो टिल 22 डेज, जब प्लांट का रूट साइज अराउंड 2 इंच तक आ जाए, उस टाइम पे हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे जर्मिनेशन ट्रेस से रिमूव करके एनएफटी चैनल्स में। ओके, यूजिंग नेक पॉट्स या फिर ऑस्मोसिस क्यूब। जो ऑस्मोसिस क्यूब की मैं बात कर रहा था, दिस इज द फोटो ऑफ ऑस्मोसिस क्यूब। ये रीयूजेबल नहीं है, ये वन टाइम यूज मटेरियल होता है, राइट। फिर ट्रांसप्लांटिंग के बाद ग्रोइंग हमने की 20 to 45 डेज तक हम इसको ग्रो करते हैं एनएफटी पे। और जैसे ही प्लांट का वेट, एक्चुअल वेट 100 ग्राम से 80 ग्राम से, डिपेंड ऑन पर्टिकुलर क्रॉप, जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए वो अटेन हो गया कि हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। यूजुअली लीफी क्रॉप्स का साइकिल 45 डेज का होता है। तो मेजर इवेंट्स विल बी डे 0 सोइंग, 5th डे मैक्सिमम जर्मिनेशन, 22nd डे को ट्रांसप्लांटिंग होगी, एंड 45 डेज का कंप्लीट साइकिल, दैट इज 45th डे पे हार्वेस्टिंग होगी। देन अदर क्रॉप इज बेल पेपर, राइट। जो रेड और येलो कैप्सिकम्स होते हैं, दोज थिंग्स। तो बेल पेपर का डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग, राइट। तो बेल पेपर में क्या होगा, डे 0 पे हमने सोइंग किया, उससे 10 दिन बाद हमें जर्मिनेशन आएगा, क्योंकि इसका जो साइकिल होता है कंप्लीट 8 महीने का होता है। 8 महीने की कंप्लीट साइकिल है। इसमें से इनिशियल 4 महीने, 3 से 4 महीने प्लांट फ्रूट्स डेवलप करने के लिए लेगा, और उसके बाद मतलब मैक्सिमम 4 महीने तक फ्रूट्स डेवलप होने के लिए टाइम आया। 4 महीने के बाद आने वाले 4 महीने हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी पर प्लांट अराउंड 3 kg, राइट। तो ये इसकी एंटायर साइकिल होती है। इसमें 7 to 10 डे पे हमें जर्मिनेशन होगा। देन जब प्लांट के जर्मिनेशन हम क्या करते हैं कि जर्मिनेशन ट्रेज में या प्रो ट्रेज में हम जर्मिनेट करेंगे। जनरली बेल पेपर्स के लिए हम प्रो ट्रेज यूज करते हैं,
इट्स नथिंग बट डिफरेंट डिफरेंट कप्स होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे. आई विल शो यू द फोटोग्राफ राइट अवे. ये डिफरेंट डिफरेंट कप्स है. हम इसको यूज करते हैं, इसको प्रोट्रेस कहते हैं. इसका रीजन ये है, जो भी लार्ज रूटेड क्रॉप्स है या जिनकी साइकिल ज्यादा है, उनकी रूट काफी जल्दी डेवलप हो जाती है. तो अगर हम इसको नॉर्मल ट्रे में, जो फ्लैट ट्रे है जिसमें कप्स का स्ट्रक्चर नहीं है, अगर नॉर्मल ट्रे में ग्रो करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, देयर रूट्स विल इंटरलॉक इन बिटवीन ईच अदर. उनके रूट्स आपस में टॉगल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम जब इसको जर्मिनेशन ट्रे में से प्लांट को रिमूव कर रहे हैं कोकोपिट में लगाने के लिए, ग्रो स्लैब में या ग्रो बैग में, उस टाइम पे इसके रूट्स डैमेज हो जाते हैं. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लार्ज रूटेड क्रॉप्स जैसे बेल पेपर, चेरी टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर, इन सब के लिए ये प्रोट्रेज यूज करते हैं. Sir, each cup contains one fruit only. सॉरी, कम अगेन. सर मतलब जो एक कप होती है, एक कप के अंदर एक ही पार्ट आता है उसका, मतलब हाँ एक जी. पर्टिकुलर फ्रूट आता है. एक ट्रे जो होता है, मतलब एक ट्रे में डिफरेंट डिफरेंट प्लांटिंग कैपेसिटी होती है. 50 प्लांटिंग कैपेसिटी, 98, 70 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांटिंग कैपेसिटी होगी, और कप साइज थोड़ी वैरी करेगी. तो एक कप में हम सिर्फ एक सीड प्लेस करते हैं, क्योंकि वी आर प्लानिंग दिस थिंग इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर. तो इससे क्या होता है कि हमें जर्मिनेशन रेट. यस, This was not my question. I was asking for number of fruit, like for example, 10 and in one tray, so one tray will produce fruit. I think there is some issue with the network. I didn't get your number, like your question, so you can simply type it in chat box. जहां तक मुझे समझा, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि एक ट्रे में हमारे कितने सीड्स हम लगाते हैं और कितने ग्रो होते हैं, राइट? अगर ये आपका क्वेश्चन है, तो यूजुअली एक ट्रे हम अब not in a tray, not in a cup, like if for example, if in a tray, in one cup we place one seed. Yes. एक कप में हम एक सीड प्लेस करेंगे. सो ट्रांसप्लांटिंग, हम ट्रांसप्लांटिंग पे थे, तो जब भी हमारा प्लांट उस प्रोट्रेज में ग्रो हो जाएगा, दैट कप लाइक स्ट्रक्चर, जब उसको 4 से 6 लीव्स आ जाएंगे, उस टाइम पे हम प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं. यूजुअली 40 दिन लगते हैं इसको. जब 4 से 6 लीफ आ जाएंगे, हम उसको प्रोट्रेज में से रिमूव करेंगे एंड वी विल सिंपली प्लेस इट इनटू कोकोपिट. ओके, चाहे हम ग्रो बैग में करें, ग्रो स्लैब्स में करें या ट्रफ में करें, जिसमें कोकोपिट फिल्ड होगा, हम उसमें इसको ट्रांसप्लांट करेंगे. फिर उसके बाद प्रूनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आ जाती है बेल पेपर्स में या वाइन क्रॉप्स में, फ्रूटी वेजिटेबल्स में. प्रूनिंग इज नथिंग बट रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ प्लांट, ताकि हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो एग्जैक्टली फ्रूट की तरफ जाए, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पे जाए. सो प्रूनिंग के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं. फर्स्ट वाई फॉर्म होने के बाद जनरली प्रूनिंग स्टार्ट की जाती है. फर्स्ट वाई इन द सेंस कि सपोज सॉरी फॉर माय वर्स्ट ड्राइंग. सो सपोज ये मेन स्टेम है और ये रूट जोन है. तो मेन स्टेम से यहाँ से जब फर्स्ट ऐसा स्प्लिट क्रिएट होगा, फर्स्ट वाई क्रिएट होगा, उसके बाद हम प्रूनिंग को स्टार्ट करते हैं, ताकि जो अनवांटेड लीव्स है, अनवांटेड ब्रांचेस है, लैटरल ब्रांचेस, हम उसको रिमूव करें और प्लांट के जो यील्ड है वो उसको इंक्रीज हो जाती है उस वजह से. देन जैसे ही प्रूनिंग स्टार्ट हो गई, उसके कंप्लीट 8 महीने बाद हमारा प्लांट हमें रिमूव करना पड़ता है, और उसके बाद हम न्यू सीड्स का जर्मिनेशन करेंगे. So this is how the entire 8 month का cycle of bell pepper, and in this 8 month like मोटा अगर देखें तो 4 महीने we will not get any production. Upcoming end के 4 महीने हैं, उसमें we will get around 3 kg production per plant, minimum 3 kg per plant. Now if you have any questions till this page, please unmute कीजिएगा and let us know so we can answer those things. And उसके बाद हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं, that is hydroponic nutrient and polyhouse structures.
Okay, so I think we are good to go. अब बात करते हैं कि हम कौन से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं प्लांट में, एक्चुअल क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो ग्रो हो, राइट? क्योंकि हमारे सबस्ट्रेट्स जो है ये बेसिकली इनर्ट है, मतलब कि इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो इस टाइम पे हम प्लांट्स को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं? सो इन हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो हो गए जिसमें कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ओके, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी क्वांटिटी में आते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट्स, ये सब क्रॉप्स। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सब क्रॉप्स। ऑल्सो न्यूट्रिएंट को हम और एक कैटेगरी है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ये एक हो गया मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। सेकंड कैटेगरी होती है अनायंस और कटायंस, और बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड केमिकल्स और निगेटिवली चार्ज्ड केमिकल्स। कटायंस हो गए पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि कैल्शियम जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। देन अनायंस, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ये सब चीजें अनायंस में आते हैं जिसमें निगेटिवली चार्ज है। अभी जनरली हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट को हम इस फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं ताकि टैंक ए और टैंक बी सेपरेट रहे। एक्चुअल रीजन इसका ये है कि हम ये 2 पैरामीटर्स को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, पार्ट ए को अलग रख रहे हैं, पार्ट बी को अलग रख रहे हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जब भी ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। इस वजह से इसको रिएक्ट होके इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये चीज को अवॉइड करने के लिए हम इसको सेपरेट टैंक में रखते हैं वंस इट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, राइट? अब इसको हम प्लांट को सर्कुलेट कैसे करेंगे? सपोज पार्ट ए या टैंक ए हमने ले लिया, ये एक टैंक, ओके, ये टैंक बी हमारी हो गई, एंड एक मेजर टैंक होगी, बड़ी टैंक, दैट इज मेन इरिगेशन टैंक और रिजर्वायर, ओके। सो टैंक ए और टैंक बी में, टैंक ए में हो गए हमारे सारे नाइट्रेट्स, कैल्शियम नाइट्रेट्स, ओके, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, आयरन, ये सब चीजें, और पार्ट बी में हो गए हमारी ये नीचे जो हमने मेंशन किए ये सारी चीजें टैंक बी में, ओके। अब ये दोनों है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। सो अब हमें जब रिजर्वायर में ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों चीजों का इक्वल क्वांटिटी लेंगे। सपोज मैंने पार्ट ए 5 ml लिया है तो मैं पार्ट बी भी 5 ml ही लूंगा। दोनों 5 ml इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद हम इसको ब्लेंड करते हैं मेन टैंक में जिसमें बहुत सारा पानी अवेलेबल है। तो अब क्या होता है, जब रिजर्वायर में या मेन टैंक में हम इसको ऐड कर रहे हैं, अब इसका एक्सेस वाटर अवेलेबल होने की वजह से ये डाइल्यूट हो जाते हैं पार्ट ए और बी, और अब इस टाइम से ये रिएक्ट नहीं होते एक दूसरे से, और अभी प्लांट इसको इजीली अपटेक कर सकता है। So this is how we will be managing the hydroponic nutrient. अगर हम डेफिशिएंसीज की बात करें कि कैसे डेफिशिएंसीज अपीयर करती है, तो जैसे आप ये फोटोज में देख रहे हो, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, नाइट्रोजन, ये सब डिफरेंट डेफिशिएंसीज है, और ये प्लांट पे इन सब वेज में अपीयर करती है। So if you have any doubts related to deficiencies or like hydroponic nutrient solutions, so we have our expert Mr. Chandan sir. So sir will help you on all these answers. Yes sir. Sir, इस like water efficiency इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, like 1/10 part यूज होता है, तो similarly nutrient efficiency भी होती है कि like normal cultivation से कम यूज होती है। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं और रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है, तो ऑब्वियसली प्लांट जितने रिक्वायर्ड है प्लांट को, उतना ही न्यूट्रिएंट हमारा यूज होगा और उतना ही वाटर यूज होगी। क्योंकि जो हम सॉइल में करते हैं वो क्या होता है कि हम फ्लड इरिगेशन एंड और भी जो इरिगेशन होता है उसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, जबकि हम हाइड्रोपोनिक्स में करते हैं तो प्लांट को जितनी रिक्वायर्ड होती है, इनफैक्ट हम जब प्लांट को इरिगेशन देते हैं ना, जो जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजर के साथ में जो इरिगेशन करते हैं, फर्टिगेशन एक्चुअली हम जो करते हैं उसमें क्या होता है कि पर प्लांट पर डे कितना हमें कितनी ml पानी चाहिए, उतना ही कैलकुलेटिव फॉर्म में हम डालते हैं।
न्यूट्रिएंट का जो कंसंट्रेशन है वो मैनेज होता है, पीएच का कंसंट्रेशन मैनेज होता है, क्योंकि अगर पीएच बैलेंस नहीं होगा तो प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि कुछ एलिमेंट ज्यादा पीएच पे अपटेक नहीं करेगा, कुछ एलिमेंट कम पीएच पे अपटेक नहीं करेगा। तो एक जो इसका रेशियो है वो 6.5 अगर हम पीएच को रखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट जो है प्लांट अपटेक कर लेता है। और कोई डाउट है? सर यदि No, sir. Thank पीएच कम या ज्यादा है, यदि पीएच कम या ज्यादा है और मैं लीफी वेजिटेबल करता हूँ, तो उसको जी। बैलेंस करने के लिए मुझे किस इक्विपमेंट और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सपोज मेरा पीएच आप जैसे कह रहे हैं 7 के आसपास है और वो प्लांट नहीं लेगा, यदि मेरा 7.9 हो गया तो उसको मुझे प्लांट को अपटेक देना है, तो मैं क्या फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट को बैलेंस करने का क्या तरीका अपनाऊं और किस मात्रा में अपनाऊं, और जिससे कि मेरा पीएच बैलेंस हो जाए और प्लांट प्रॉपर काम करना शुरू कर दे और मेरी जो प्लांट अपटेक इफिशियंसी है वो थोड़ा जस्टिफाइड होके प्लांट लेना लगे। बिल्कुल। तो और वो जब मैं हम चेक, pH सॉरी हमारा सॉरी ज्यादा हो सॉरी सर, जाता वो मैं चेक कैसे करूंगा या मतलब ये नंबर ऑफ टाइम्स कब दिन में या 4 दिन में कैसे चेक कर सकते हैं, वो पता कैसे इसमें लगे? ऐसा होता है सर, अगर हम सिस्टम्स लगा रहे हैं ना, तो हम ये दोनों इक्विपमेंट जो दोनों सेंसर है, ईसी एंड पीएच, दोनों सेंसर को हम प्लेस करते हैं। जो हमारा म्यूट करना जरा, जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या करते हैं कि अ, दोनों चीजों को प्लेस कर देते हैं, ईसी एंड पीएच का जो सेंसर है। तो क्या होता है हाँ। कि ऑल टाइम हमारा ईसी एंड पीएच मेजरमेंट देता है। और अगर हम ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखे हैं, अगर हमने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है कि पीएच भी बैलेंस करना है, ऑटो डोजर लगा रखा है, तो उसमें क्या होता है कि ईसी का अलग है, पीएच का अलग है। तो अगर हमें पीएच को अप करना है तो हाँ। कास्टिक पोटास यूज कर लेते हैं, वो प्लांट के लिए इतना हानिकारक नहीं होता है। और अगर डाउन करना है तो हम जैसे आपका फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक हम्म, एसिड है, वो यूज कर लेते हैं हम्म, डाउन करने के लिए। अगर हम हमारे पास अगर डोजर है तो उसमें हम फिक्स कर देते हैं इस 6.5 ही चाहिए। तो अगर डाउन होगा तो अगर पीएच अप हो गया तो फॉस्फोरिक एसिड उसमें ऐड हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, वो जा करके उसे मैनेज कर देगा। अगर मैनुअल करना है तो भी हम 10% का फॉस्फोरिक एसिड का हमने बना के रखा है या 10% का कास्टिक पोटास का हमने सॉल्यूशन बना के रखा है। जब हमें अप लगे तो उसे डाउन कर देंगे, अगर डाउन है तो अप कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। जी बताएं, और कोई डाउट है? स्क्रीन शेयर करो। तो हम थोड़ा सा डेफिशिएंसी वाला पार्ट देख लेते हैं। डेफिशिएंसी में क्या होगा कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग जो लोकेशन है वहां पे शो करेगी डेफिशिएंसी। स्लाइड आने दो ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी शो हो रही है। इसका बेसिक जो रीजन है वो क्या है कि सारे एलिमेंट जो होते हैं जैसे एनपीके है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सबका जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। कुछ जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के अंदर इमोबाइल होते हैं, कुछ एलिमेंट प्लांट के अंदर मोबाइल होते हैं। इमोबाइल और मोबाइल कहने का मतलब ये है कि वो प्लांट के अंदर मूव करेगा, मतलब बॉटम टू टॉप। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं, जो एलिमेंट ऐसे हैं जो इतना ज्यादा मोबाइल नहीं होता है, जैसे कि कैल्शियम, बोरोन, ये सारे एलिमेंट है, ये प्लांट के अंदर इमोबाइल है। तो क्या होता है कि जो इसकी डेफिशिएंसी शो होती है वो टिपिकल बड पे ही होता है। जैसे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मोबाइल है प्लांट के अंदर, तो क्या होता है कि फ्लो ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि इसके जो नाइट्रोजन एलिमेंट है ये ऊपर ज्यादा चले जाते हैं। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो होता है नीचे की तरफ से, जो ओल्डर लीफ है उसमें शो करता है। और जैसे कि आपका नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है या कैल्शियम का डेफिशिएंसी है या मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है, तो होता क्या है कि सब में आपको येलोइश ही दिखेंगे।
सब में येलोसिस ही होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट उसके पहचानने का नियम है। जैसे अगर इंटरवेनल क्लोरोसिस हो रहा है, क्लोरोसिस दैट मीन्स कि प्लांट का लीफ का येलो होना, क्लोरोफिल गायब हो जाना, तो क्लोरोसिस उसको बोलते हैं। तो जैसे अगर पूरा का पूरा प्लांट का पत्ता लीफ जो है बिल्कुल येलो हो रहा है, तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होगी। अगर इंटरवेनल हो रहा है तो वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होगी। अगर टिपिकल बड जो है वहां पे अगर अपने को येलोइश दिख रहा है तो वो कैल्शियम या बोरॉन इन सब चीजों की डेफिशिएंसी होती है। कंटिन्यू कर। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉली हाउस क्या है, पॉली हाउस क्या एक्चुअल में चीज होती है, देन क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए बिफोर सेटिंग अप अ पॉली हाउस, कि हमारे साइट में क्या क्या जो लोकेशन है उसमें क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होगी। तो एट वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली पॉली हाउस क्या है। सो पॉली हाउस इज नथिंग बट एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटसाइड इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट को सेपरेट करेगा और प्लांट्स को आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करेगा टू ग्रो। अब पॉली हाउस वेरियस डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि पॉलीशीट जो कि ट्रांसपेरेंट है, देन ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट चीज है। तो कैन एनीबडी अनम्यूट एंड लेट मी नो कि हम ग्लास पॉली हाउस क्यों यूज करेंगे अगर हमारे पास चीपर अल्टरनेटिव पॉलीशीट है। ओके, सो बेसिक रीजन उसका एक ही है कि जहां पे हेवी स्नोफॉल होता है उस लोकेशंस में पॉलीशीट वाले पॉली हाउस इतना वेट नहीं बेयर कर पाते, तो उन लोकेशंस पे हम ग्लास पॉली हाउस इंस्टॉल करते हैं जो कि जिसका वेट होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। क्योंकि पॉलीशीट पे क्या होगा कि जब भी स्नो फ्लेक्स गिरेंगे, स्नोफॉल होगा, तो उस टाइम पे जब इनिशियल फ्लेक्स है तो वो फ्रेश फ्लेक्स होंगे, उस वजह से उसका वेट काफी कम होगा, बट आफ्टर फ्यू डेज वो काफी ब्लैक आइस की तरह बन जाते हैं, काइंड ऑफ हेवी स्नो बन जाता है, जिस वजह से एक तो सनलाइट आने का इशू होगा, क्लीनिंग में इशू होगा, अनदर थिंग इज कि उस वेट को पॉलीशीट बेयर नहीं कर पाएगा। सो फॉर दैट वी यूज ग्लास पॉली हाउस फॉर एक्सट्रीम स्नोफॉल एरियाज ओनली। ओके, so Sir, please before do the session in both languages because there are few students who don't understand Hindi much. So okay, so I will repeat both bilingual this, but the only thing is that it will we will have to extend this session for at least 15-20 minutes at that point. Sure, sir, Will it it work? can. Okay, definitely. So I will Yes, try sir. to wind up in both the languages. Yeah, Right? thank you, sir. So, I also don't follow Hindi. okay, not an issue. I will completely understand. So I will completely share you in both the languages, right? So now, if Thank you, sir. we have covered in Hindi itself. So from here we will continue in Hindi and English both. So in English, basically, polyhouse is nothing but a specially constructed building-like structure, which separates plants or protects the plants from harmful rays like UV rays. Along with that, it creates, we can say, a separate environment or ideal environment for the plant to grow. Now, there are two major components through which the polyhouse can be made. The very first one will be the polysheet, which is kind of a plastic-like material, and another thing is glass material. So polysheet is used all over the India, throughout the India, excluding only those regions where there is heavy snowfall. So in extreme snowfall areas, we prefer glass polyhouses so that it can be easy to clean. It can hold maximum weight of the black ice, because after few days that snow will turn into black ice, so it will hold the weights very amply, and the light transparency is more in those locations. So we can use glass polyhouse in extreme snowfall areas or snow prone areas, and remaining areas we can cover with polysheet itself because it's cheap and widely available. Now site selection के बारे में बात करते हैं कि before we start the polyhouse construction हमें क्या क्या parameters को make sure करना है. So for that purpose यहाँ पे कुछ parameters है, जैसे कि हमारा जो location होगा polyhouse का वो easy to access होगा, that is कि वहाँ पे road connectivity होना जरूरी है. Then वहाँ पे electricity supply and water supply, reliable electricity and water supply should be there, right? एक
ठोस वाटर सप्लाई हो हमारे पास और एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, ये दो चीजें हमें रिक्वायर्ड है। अलॉन्ग विद दैट जो हमारा पानी होगा उसका टीडीएस, जो नॉर्मल वाटर है, द नॉर्मल वाटर टीडीएस शुड बी बिलो, वी कैन से लाइक 300, right? It should be below 300 maximum. If it is go beyond 300, somehow we need to set a industrial RO. Okay? क्या होता है कि जब पानी का टीडीएस ज्यादा हो जाएगा, सो एट दैट पॉइंट अगर वो 300 टीडीएस के ऊपर है तो उस टाइम पे हमें इंडस्ट्रियल आरओ सेटअप करना होगा ताकि हमारा नॉर्मल वाटर है उसका टीडीएस कम हो जाए। इसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज वी विल बी यूजिंग फॉगर्स, एयर, देन ड्रिप पाइप्स, so these things can get choked due to heavy calcium available into that particular water or heavy salts availability into that water. So ये choking को avoid करने के लिए foggers और air circulation foggers और drippers का choking avoid करने के लिए हम low EC या low TDS वाला water prefer करते हैं, right? Then the another thing is that कि जो हमारा location है, the polyhouse location should be away from any large buildings or trees. The only reason is that कि अगर आसपास कोई लार्ज बिल्डिंग है, सपोज कि हमारा जो पॉली हाउस का लोकेशन है इट्स इन अ रेसिडेंशियल एरिया, एक सोसाइटी वाले एरिया में है और उसमें हमारा एक खाली प्लॉट है अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर, वी कैन से एनी प्लॉट चंक ऑफ एरिया। तो वहां पे क्या होता है मेजरली इशू कि जब हमने पॉली हाउस कंस्ट्रक्ट किया उस टाइम पे साइड में कोई ऑब्स्ट्रैकल नहीं होता, बट आफ्टर 1 to 2 years वहां पे कोई बिल्डिंग्स या वो सब चीजों की वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। तो वी शुड मेक श्योर कि आसपास कोई बिल्डिंग्स ना हो, कोई लार्ज ट्रीज ना हो, ताकि एयर फ्लो को ब्लॉकेज ना है। Also, another thing we should make sure that very first thing is that buildings and large obstacles should be not there at the polyhouse sites. Another thing is that site should have a good aeration, a good airflow, and it should be away from the flood prone areas. जहाँ पे बाढ़ आ जाती है उन लोकेशंस को हम अवॉइड करके बाकी जगह पे पॉलीहाउस सेटअप कर सकते हैं, right? So these are the things we should make sure before setting up a polyhouse. Then we will discuss only two major types of polyhouse. The very first will be naturally ventilated polyhouse and second will be a fan pad based polyhouse. So ये जो naturally ventilated polyhouse है ये fully climatic control नहीं होता, ये partially climatic control होगा। That is कि इसमें outside air का use करते हुए हम temperature को manage करेंगे। अब इसमें क्या होता है, you can see these things, these are the side curtains, okay? ये अभी पॉली शीट से क्लोज्ड है। Once we rotate this roller, यहाँ पे एक रोलर होता है, ये रॉड लाइक थिंग यू आर सीइंग, राइट, दिस थिंग। सो इसको रोटेट करने के बाद ये जो पॉली शीट है ये ओपन हो जाएगी और साइड वेंट में इंसेक्ट नेट होती है। सो वाया दैट इंसेक्ट नेट द फ्रेश एयर कैन पास थ्रू और एंटर इनसाइड द पॉली हाउस। अब इसका सिंपल कंसेप्ट बहुत बेसिक है, वर्किंग फिनोमेना, दैट इज कि जो भी बाहर आउटसाइड में वट एवर द एयर इज अवेलेबल, दैट एयर विल बी फ्लोड इनसाइड द पॉली हाउस, ओके, और colder air will stay at the lower height and warmer air will try to move upward, okay, and via these top vents it will escape into the outside environment. The warmer air will escape into outside environment, right? Actual में क्या होता है naturally ventilated poly house में कि जो poly sheet है ये रोलर, इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक इंसेक्ट नेट होगी जो कि चारों साइड से होती है पॉली हाउस के। तो इस इंसेक्ट नेट से नॉर्मल एयर जो है बाहर की वो अंदर जाएगी, ठंडी हवा नीचे वाले हाइट पे रहेगी और गर्म हवा ऊपर से जो टॉप वेंट्स है वहां से एस्केप हो जाएगी। और टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए और ह्यूमिडिटी को मैनेज करने के लिए हम एयर सर्कुलेशन फैंस और फॉगर्स इंस्टॉल करते हैं। मैं उसके फोटोज आपको आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि हाउ दिस एयर सर्कुलेशन फैन एंड फॉगर अपीयर्स एंड हाउ इट कंबाइनली वर्क टू मेंटेन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओके। सो ये हो गया नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस जिसमें हमें टेम्परेचर पे पार्शियल कंट्रोल होगा, ओके। सो वी कैन ओनली ग्रो दोज क्रॉप्स जो कि हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो, जो टेम्परेचर सेंसिटिव ना हो, वही क्रॉप्स हम इसमें ग्रो कर पाए। नाउ द सेकंड सिस्टम इज फैन पैड बेस्ड पॉली हाउस और वी कैन से अ फुल्ली क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड पॉली हाउस। तो इन फैन पैड बेस्ड पॉली हाउस व्हाट वी डू, सपोज ये जो पॉली हाउस है इसके इस एंड पे हम सेल्यूलोज कूलिंग पैड्स प्लेस करते हैं और अपोजिट एंड पे जो कि इधर वाला साइड है, इस साइड पे हम प्लेस करेंगे एग्जॉस्ट फैन, ओके। ये जो है ये यहाँ पे कूलर लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द सेल्यूलोज कूलिंग पैड। ये सिमिलर होता है कूलर के स्ट्रक्चर से, इसमें वाटर इनलेट होगा जिससे कि जो भी
मॉइस्चर है वहां पे, वाटर है, वो इस कूलिंग पैड्स में जाए और आउटसाइड एयर इसमें आने के बाद इसमें कूलिंग पैड के लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है एंड अपोजिट एंड से जो एग्जॉस्ट फैंस है उसके थ्रू ये जो वार्मर एयर है वो एस्केप आउट हो जाएगी पॉली हाउस से. So using this phenomenon, we will have a fully climatic control polyhouse and really good control over to temperature. What actually happens over here, the air which is present outside the polyhouse will pass through these cellulose cooling pads, and then the temperature of that particular air is lowered down because these cooling pads have some water inlet inside it. So due to that water, the air temperature is lowered down, and now it will be circulated inside the polyhouse. And at the opposite end of the polyhouse, where we have placed the cellulose cooling pad, opposite to that we will place this large industrial exhaust. Its size varies from like usually its size is around 4 feet, 4 to 5 feet. Okay, so we will place this exhaust fan so that we can have good control over to temperature and humidity. Right now, this is how the NFT channel will appear. Okay, जो NFT के बारे में हम बात कर रहे थे कि NFT channels कैसे होंगे, so that is nothing but this is how the NFTs will appear. Okay, now you can see इसका जो size है ये 3 से 4 इंच होता है. So this is how we can grow only 3 to 4 inch का plants inside this, जिसका root size 3 to 4 inch हो, and be assured these material is a food grade material, so it will not release any microplastic inside the food system. Okay, so it's a food grade thing. Then ये जो NFT channels है इसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं ये माइक्रो ट्यूब से. So जो मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि हम NFT के एक एंड में न्यूट्रिएंट को डिलीवर करते हैं. So जो डिलीवर होने वाला न्यूट्रिएंट का जो ट्यूब है, that is nothing but this black micro tube. So via this micro tube, we will simply insert this micro tube in this hole, in this one end of the NFT channel, and this is how we will be delivering nutrient. Okay. Then this is the germination tray, and you can see यहाँ पे देखिए हमने osmosis cube में green lettuce का germination किया है. So this is how we will be going for the germination. This germination tray is also food grade material. Okay. See, and जो मैंने परलाइट करके एक सबस्ट्रेट बताया था आपको कि जो एरेशन में हेल्प करता है. So you can see this is how the perlite will appear. It helps in aeration. What it does, it will absorb all the excess moisture available into that particular coco pit or particular environment, and it will hold inside it. So excess moisturing का issue कभी नहीं आता if we add perlite into coco pit. The blending ratios varies depending on the crop. Usually it will be 1:10, 1 part of perlite, 9 part of coco pit. Then Lica balls, these are the clay balls. So I told you कि Lica balls are widely used in NFT channels. ये net pots में हम Lica balls को fill करते हैं. This net pots, इसके अंदर हम Lica balls insert करेंगे and roots के आसपास रखेंगे, and then we place it into NFT channel. Then these grow bags, these are the grow bags filled with coco pit, and crop has seedless cucumber inside it. So ये grow bag आप देख रहे होगे कि अंदर से black है और बाहर से white है. The reason is that it's a UV stabilized poly bags or grow bags. So we prefer UV stabilized grow bags for growing various different crops. Okay. Then we were talking initially कि foggers and air circulation fans को हम use करेंगे for maintaining the temperature and humidity. So this is how the fogger will appear. Now what this fogger or misting fogger will do, ये क्या करता है, ये air में छोटे छोटे water के droplets release करेगा. Okay, it will release or emit small tiny water droplets inside the polyhouse. और ये जो foggers होते हैं, these are placed from the upper region facing toward the plant. Polyhouse के ऊपर वाले region में हम इसको रखेंगे plant की तरफ face करते हुए inside the polyhouse. Okay, foggers water droplets को emit करते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी और सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर मैनेज करने में भी थोड़ा हेल्प करता है. अलोंग विद दैट दीज एयर सर्कुलेशन फैंस, ये भी पॉलीहाउस के अंदर प्लेस्ड होते हैं. तो ये एयर सर्कुलेशन फैंस ये वाटर ड्रॉपलेट्स को थ्रू आउट द पॉलीहाउस इजीली सर्कुलेट कराते हैं, so that कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूनिफॉर्मली मैनेज हो इन एंटायर पॉलीहाउस. देन दिस इज हाउ द पीएच मीटर विल अपीयर, जो कि मैन्युअली पीएच को मेजर करने के लिए यूज होगा. pH is nothing but the acidic or basic nature of nutrient.
न्यूट्रिएंट कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये चीज को जानने के लिए पीएच मीटर यूज किया जाता है। पीएच का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जस्ट लाइक ह्यूमंस, इमेजिन कीजिएगा कि हमारे जो स्टमक का जो जूस है, बाइल जूस, उसका एसिडिक उसका जो पीएच है वो अचानक से बेसिक हो गया, जो कि एसिडिक है वो अचानक से चेंज हो गया, बेसिक हो गया, तो हम जो फूड इनगल्प कर रहे हैं हम उसमें से न्यूट्रिएंट नहीं अपटेक कर पाएंगे। सो उसके लिए पीएच मीटर यूज किया जाता है ताकि हम डिफरेंट केमिकल्स यूज करके पीएच को सेट करें ताकि प्लांट न्यूट्रिएंट इजीली अपटेक करे, राइट। बेसिक phenomenon of using pH meter is that it will simply help us to maintain the pH level, acidic or basic level of the nutrient solution. So just like human beings, if the pH of our like acidic nature of our bile juice or our stomach juice suddenly change into basic, so we will be not able to uptake the nutrient which we engulfed or the food which we engulfed, right? So to manage those things, to set it into particular pH range, we use different chemicals, and using this device we will get to know कि क्या pH है उन nutrient का, so that plant can easily uptake it. Then this is the TDS meter through which we get to know कि nutrient का concentration क्या है. In simple words, it's known as concentration. नापने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं कि हम क्या TDS का nutrient plant को दे रहे हैं. Then this is the hygrometer, which will tell us about the temperature and relative humidity inside the polyhouse. पॉलीहाउस के अंदर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है उसको हम हाइग्रोमीटर से चेक करेंगे. Then you can see this is the weed mat, this black color thing. This is the weed mat. So इसमें different colors आते हैं, black and white. Now this is the initial photograph, really old photograph, 5-6 years prior. Currently we prefer only white weed mat. The only reason is that it will reflect the heat. It will reflect the heat wave at very first. And the somehow it will help in cooling the temperature, lowering the temperature. Another thing is that it will reflect sunlight to the lower leaf of plant. You can see that this is the cucumber plant and the leaves are at extreme lower height. So it will not get obviously ample amount of sunlight. To provide ample amount of sunlight, we will simply use white weed mat so the sunlight can be reflected to these lower leaves. Weed mat में दो कलर्स आते हैं, black and white, right? अगर black कलर की white कलर हम इसलिए यूज करते हैं ज्यादातर क्योंकि वो सनलाइट को लोअर वाले जो प्लांट के कम हाइट वाले लीव्स है, छोटी हाइट पे जो लीव्स है उन पे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे और टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी मैनेज करे. देन दिस इज द रोलर आई वाज टॉकिंग कि मैंने कहा था आपको कि नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस में वो रोलर हटाने के बाद एक इंसेक्ट नेट होती है जिसके थ्रू बाहर की एयर अंदर पॉली हाउस के एंटर करेगी, ओके. एंड ठंडी हवा नीचे वाले लेयर पे रहेगी और गर्म हवा ऊपर की तरफ से टॉप वेंट से एस्केप हो जाएगी. सो दिस इज द रोलर जिसके थ्रू ये पाइप जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रोलर थ्रू विच वी विल क्लोज एंड ओपन दिस साइड वेंट्स, ओके. दिस इज द रोज कैन यूज फॉर मैनुअल वाटरिंग. दिस इज द ड्रिप एरो और ड्रिप पाइप थ्रू विच द न्यूट्रिएंट विल बी डिलीवर्ड टू द रूट. ये ड्रिप के जो ग्रूव्स है इसके थ्रू न्यूट्रिएंट प्लांट के रूट साइज में जाता है, रूट जोन में जाता है. देन sorry, the first photograph is blurred, but you can see in second photograph itself this gray color material, okay. ये जो ग्रे कलर का आपको मटेरियल दिख रहा है यहाँ पे, this gray color material is nothing but the aluminum sheet net. So what it will do, it will reflect the heat wave and only allow light particles or photon particles to pass through it. ये क्या करता है, जो भी सनलाइट की इंटेंसिटी है उसमें से गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देगा और जो लाइट के पार्टिकल्स है, फोटोन पार्टिकल्स, उसी को फार्म के अंदर, पॉलीहाउस के अंदर एंटर करवाएगा. सो समहाउ इट विल हेल्प इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मेंटेनिंग द टेम्परेचर आल्सो, राइट. देन आप देख रहे होंगे सेकंड फोटोग्राफ में दिस ट्रेलिस ट्वाइंस, these threads, I think it's not that much cleared, but over to this patch you can observe it. ये व्हाइट कलर के थ्रेड्स हमने अटैच किए हैं हर एक क्यूकम्बर के प्लांट को, सो दैट कि ये जो ट्रेलिस ट्वाइंस है जो पॉलिस्टर से बनी हुई है, सो ये मटेरियल प्लांट को अपराइट सीधा होल्ड करने के लिए हेल्प करेगा. एंड ये जो ब्लैक कलर का डिवाइस है एच हुक, इसमें हम ये ट्रेलिस वायर्स को अटैच करते हैं. दिस इज द जूम फोटोग्राफ ऑफ एच हुक, ओके. सो इसमें हम ये ट्रेलिस ट्वाइंस को अटैच करेंगे और बॉटम में इसको प्लांट से क्लिप्स के थ्रू हम इसको अटैच कर देते हैं या नॉट से अटैच करते हैं. देन दिस इज अ ग्रो स्लैब, ओके. ये ग्रो स्लैब है जिसके अंदर कोकोपिट फिल्ड अप है. अब ग्रो स्लैब का प्लस पॉइंट ये है कि ये
कंटेमिनेशन को अवॉइड करा देता है, क्रॉस कंटेमिनेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा 4 to 5 प्लांट्स पे ही, क्योंकि ये 1.2 मीटर का ब्लॉक होगा. दिस इज विल बी अ 1.2 मीटर ब्लॉक ऑफ कोकोपीट which is covered with UV stabilized polysheet so that there should be near to zero moisture loss. ये UV stabilized polysheet से covered है ताकि इसमें moisture loss काफी कम हो, और ये 1.2 मीटर स्लैब में हम 5 to 6 plants, different plants हम इसमें रख सकते हैं. The crop on your screen is a habanero and pomnaro. Then these are open troughs. Okay, इसमें भी कोकोपीट यूज किया जाता है, बट द ओनली थिंग इज कि इसका एयर के साथ कॉन्टैक्ट एयर के साथ बहुत ज्यादा है, तो मॉइस्चर लॉस इसमें ज्यादा होगा. अनदर थिंग इज कि इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन ज्यादा होगा. अगर मेरा फर्स्ट प्लांट में कोई वायरल अटैक आ जाता है, सो विद इन अ नाइट इट कैन ट्रांसमिट और कंटेमिनेट माय एंटायर ट्रफ, जिसमें मेरे 200 कभी कभार 500 प्लांट्स भी हो सकते हैं. सो वी प्रेफर ग्रो स्लैब्स और ग्रो बैग on the priority to avoid cross contaminations. Then you can see these blue and yellow things, these are sticky traps. ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इट विल इमिट, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इमिट करता है ताकि जो भी इंसेक्ट्स है, जस्ट इन केस वो पॉली हाउस में एंटर हो जाए तो वो इन पे अट्रैक्ट हो रादर देन हमारे क्रॉप्स पे, और इसके थ्रू हमें आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प होता है कि कौन से इंसेक्ट्स इस पे हमारे फार्म्स के अंदर आ चुके हैं. देन दीज आर ट्रेज और प्रो ट्रेज. Now till now we have covered the equipment accessories part. Now we will simply run through these primary benefits. कि primary benefit क्या होंगे हाइड्रोपोनिक्स के. कि पहले तो हमें लैंड रिक्वायरमेंट विल बी लेस, लैंड हमें काफी कम एरिया में हम काफी ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं. देन हम न्यूट्रिएंट को, टारगेटेड न्यूट्रिएंट को हम प्लांट्स को डिलीवर करते हैं. तो फॉर एन एग्जांपल, अगर एक क्रॉप में सपोज मैं बेल पेपर की बात करूं, तो सॉइल वाले बेल पेपर में अगर सपोज 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें 1 ग्राम प्रोटीन हो. वेयरएज हाइड्रोपोनिक में हम टारगेटेड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इट विल हैव at least that much nutrient which is required, which is the maximum limit of that particular crop, right? Then disease and pest को manage करना will be easy and labor's requirement will be less. Labor हमें 1 एकड़ में बहुत कम लगेंगे as compared to traditional agriculture. Then the thing is कि हम किन किन को ये crops बेच सकते हैं. तो बेसिकली मंडीज में इनका रिक्वायरमेंट तो बल्क में होता ही है. अलोंग विद दैट देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन होरेका सेगमेंट. होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग चेन्स में इनका रिक्वायरमेंट है. वी कैन हैव टाई अप विद एनजीओज, वी कैन हैव टाई अप विद सुपरमार्केट चेन्स, फूड चेन्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है और एक्सोटिक क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत कम है एंड रिक्वायरमेंट इज रियली हाई. ओके, नाउ इफ वी थिंक कि हमें और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट? क्योंकि बेसिक लेवल पे वी विल बी समहाउ कनेक्टिंग टू मंडी, और हम मंडीज में तो इजीली बेसिक लेवल पे सेल कर ही सकते हैं, बट एक्सपांशन कैसे करें ताकि हमारा वैल्यू एडिशन इसमें हो जाए. सो इन सिंपल थिंग, अगर हम करंट सिनेरियोस देखें, सो इन इंडिया करंटली द सुपरमार्केट चेन्स लाइक ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, फ्रेश एंड इजी, these kind of things, Reliance Fresh are really booming a lot. So you can simply have a contractual rates with these guys because you can produce a year-round production. आप साल भर कंटिन्यू प्रोडक्शन निकाल सकते हैं क्योंकि आप पॉली हाउस में कल्टीवेट कर रहे हैं. इररेस्पेक्टिव ऑफ बाहर बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, आपका प्रोडक्शन कंटामिनेट नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता. तो आप सुपरमार्केट चेन्स जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, इन सब से ट्राई अप करके कॉन्ट्रैक्चुअल रेट्स पे सेल कर सकते हैं अलॉन्ग विद हाइड्रोपोनिक सेलर्स. और देयर इज वन मोर थिंग, वी कैन सिंपली एक्सपोर्ट इट टू वेरियस डिफरेंट कंट्रीज. हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट? इंडिया में हमें कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं. द वेरी फर्स्ट इज सब्सिडी पार्ट. ओके, वी विल डिस्कस दैट सब्सिडी, क्योंकि उसमें देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो हम एट द एंड वी विल डिस्कस दिस सब्सिडी पार्ट कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फाइनेंशियल एड्स वी कैन अवेल. देन इन इंडिया हमें पेस्ट और लाइक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, या इन शॉर्ट हम कहें इजी एक्सेस टू फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स है, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. देन लेबर्स कॉस्ट will be really less in India, so we can utilize those things also. And knowledge exchange is a phenomenon in hydroponics, or and we can say India is really good. कि seminars या various different platforms पे हम knowledge exchange कर सकते हैं to understand hydroponics क्या क्या benefits हमें provide कर सकते हैं. right? अब बात करते हैं कि हम as in farming wave हम आपको कैसे help कर सकते हैं, right? So in simple words, we are a turnkey solution company.
So in simple words, like we construct your poly house, हम आपका पहले poly house construct करेंगे, then we will set up the automation, right? Automation भी हम set up करेंगे along with all the equipment and accessories. Now automation, we have two automations. The very first one will be climatic control automation, जिसमें कि हम climate control करेंगे पहले automation में, जो कि होगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब मैनेज करने के लिए. सो जब भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक सेट पैरामीटर्स के अबोव या बिलो जाती है, सो एट दैट टाइम the automation will turn on the air circulation fans, foggers, exhaust fan pads, all these things by its own and turn it off by its own, right? Second thing will be nutrient dosing में, कि dosing system या fertigation system, depending on the crop, हम dosing system या fertigation system install करते हैं, so that कि you don't need to manually set the TDS and pH of the hydroponic nutrient. जो हमने TDS और pH की बात की थी, वो हमारा automation के थ्रू कवर हो जाता है, आपको manually करने की जरूरत नहीं पड़ती. But still, for understanding purpose, we have shown you the manual meters also, right? So अब तक हमने construction cover किया. From Farming Web, we have various partners, our partners, so we can cover the construction part. Then we set up the equipment, accessories along with automation, right? ये हो गया construction का. For agronomy, we have one model. In that agronomy, what we can do, you can like simply have agronomical support from our end, and we will be taking care of your entire crops. आपके जो भी क्रॉप्स आप ग्रो करोगे उसका एग्रोनॉमी सपोर्ट, उसकी ग्रोइंग से रिलेटेड हमारा ऑन ग्राउंड पर्सन आपके फार्म पे होगा ऑन एवरीडे बेसिस फ्रॉम 9 to 5 और वट एवर टाइम इज रिक्वायर्ड, एंड ही विल टेक केयर ऑफ एंटायर फार्म. एंड टू क्रॉस चेक कि वो पर्सन जो फार्म पे है वो सही कर रहा है कि नहीं, आर कोर एग्रोनॉमी टीम विल टेकिंग फॉलो अप ऑन एवरीडे बेसिस, राइट? सो नाउ हमने कंस्ट्रक्शन कवर किया, अलॉन्ग विद दैट हमने ग्रोइंग भी कवर किया. अब बात करते हैं कि बेचे कहाँ. सो फॉर सेल्स व्हाट वी डू, हमारे पास कुछ एज अ गुडविल गेस्चर हम आपको कुछ वेंडर्स की लिस्ट देंगे जिनके पास इन क्रॉप्स की बल्क में रिक्वायरमेंट होती है वंस यू एनरोल इनटू आवर टर्नकी सॉल्यूशंस, राइट? सो आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपना प्रोडक्शन सेल कर सकते हैं. अलॉन्ग विद देयर इज नो एनी कैपिंग कि आपको हमारे वेंडर्स को सेल करना ही होगा या आप दूसरे वेंडर्स को नहीं सेल कर सकते. यू आर सेल टू एनी ओपन मार्केट, ओके? Then also we take care of the PD parameters, filing the DPR to National Horticulture Board, then availing Agri Infrastructure Funds benefits. All these things will be managed from our end only without any additional charges. Then what we actually do, like why we are different from the market. See, we will construct your poly house, we will take care of your growing, we will help you in selling the production. Along with that, we will help you in creating your own company so that you can simply brand your articles, your vegetables, and sell it by having a FCCA certification and by having registering your company in different firms like LLC, LLP, or we can say private limited. Also, हम depending on particular locality, हम आपको क्रॉप सजेस्ट करते हैं कि हम कौन सा क्रॉप ज्यादा ग्रो करें, इसका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा, इसका डिमांड ज्यादा होगा, केटरिंग जोन हमारे क्या होंगे, ये सब चीजें हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, राइट? Now we are open for uncapped Q&A session. आपको जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग फाइनेंस या रिगार्डिंग गवर्नमेंट एड्स या हाइड्रोपोनिक सिस्टम, ये सारी चीजें let us know. We both will answer all the queries. Chandan sir will help you on the agronomical part. I will help you on different various aspects of finance and setting up the farms, all these things. So that's all from my end. We are open for Q&A sessions. Yeah, hi. Actually, So what about the installation cost? Yeah, go ahead. So what about the installation cost? So if you want to work on the turnkey solutions, it completely depends on the crop itself, right? पहले अगर हम leafy crops की बात करें तो installation cost will be high as compared to fruity vegetables. On broader spectrum, हमें fruity vegetables initial go में काफी अच्छा होगा. रीजन ये है क्योंकि इसका मार्केट डिमांड ज्यादा है, शेल्फ लाइफ ज्यादा है. तो हम अगर सपोज वी कैन से नागपुर में हम पॉली हाउस सेटअप कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास लीफी क्रॉप्स है तो हमें समहाउ नागपुर या नागपुर के नियर बाय लोकेशंस में ही केटर कर पाएंगे, बिकॉज़ वी विल हैव द शेल्फ लाइफ ऑफ अराउंड 5 to 6 hours only. Whereas if we talk about fruity vegetables, the shelf life will be 5 days, so we can send it to any location. So my advice will be we can go with fruity vegetables at once. Entire turnkey solution will cost around 80 lakhs, including each and every equipment, accessories. Only thing we required from your end is setting up the industrial RO if required, and basic land preparation just in case the land has any crop growing inside it,
like sugar canes or anything. So we need to be cleaned so that our team can work on it. So in 80 lakhs, everything will be winded up. In fact, the seeds, nutritions, and all the consumables too. For 1 acre. Considering bell pepper, cherry tomato, seedless cucumbers, these kind of crops. Right. So do you offer any help in marketing the produce? Yeah, definitely we help in marketing the produce. But the thing is that we will not definitely upfrontly sell your produce on your behalf. What we will do, we will help you with the list of vendors. You can contact them. Those are the genuine vendors, so you can rely them on the payment terms. Okay, you can simply contact them and sell your production. Another thing is that we will also help you to create your own brand. We have our own marketing team, so we'll help you with how to have the pitch deck competitions, how to enroll for those things, what are the parameters we should take under consideration for having a large fundings. So we help in each and every aspect in turnkey solutions. Okay, thank you very much. And is there any specific information I can access for a farm in Nagaland? Yeah, Like definitely. For the government aids, somehow like I personally have connects in India location itself. I don't have any connects in foreign countries, but definitely our team will look forward to those things, and we will definitely work on those parameters. Great, thank you, sir. सर इसमें वाटर का पीएच कितना होना चाहिए? ओके, वाटर का जो पीएच है हम जनरली इसको नियर टू न्यूट्रल कंसीडर करते हैं कि 6 या 7 के आसपास हो तो इट्स गुड, 6.5 to 7.5 तक. बट जस्ट इन केस अगर नहीं भी है तो अगर पीएच ज्यादा है तो बेसिकली हमारा टीडीएस भी ज्यादा होता है. सो जब हम आरओ सेटअप करते हैं तो टीडीएस एंड पीएच बोथ द थिंग्स विल बी मैनेज्ड. Hi. Thank you, sir. Hello. Sir, is there in polyhouse? Yes, can you repeat? Is there any government subsidies can we get in polyhouse? Yeah, definitely we can have the government subsidies from National Horticulture Board. We will take care of the things, right? The entire process of this subsidy is something like that. At initials, the subsidy will be a back-end subsidy, and it will be on 50% of external polyhouse structure only. That is 50% on external polyhouse structure means the GI material, right? The galvanized iron which we will be using and polysheet. Only 2 components will be included in that. So easily, like on an average, usually various people can avail up to 16.8 lakh rupees per acre, okay, of subsidy. But as we have expertise and we are into this business since last 5 to 6 years, so we can avail it of 24 to 25 lakh per acre. Now the process will be something like that. If you will have the quotation, we will share you the quotation and the ROI sheets. You can simply take it to the bank, ask them what is the loan they can provide on this thing, right? Minimum loan required will be 50% of total project. So suppose 80 lakh ka project is there, so minimum 40 lakh ka loan we required. It completely depends on you and the bank's interaction and your CIBIL scores. Once these things are done, that is loan amount and the annual interest rate, once these things are final, we will file the DPR, detailed project report, to National Horticulture Board. Okay, once the DPR has been submitted, it will at least take 1.5 to 2 months to have the grant of clearance from National Horticulture Board. Okay, now once we have the grant of clearance, bank will disburse the loan amount, and at this stage we will start the construction. Now the construction will be winded in maximum 3 months. Okay, once the construction is completed, the final survey will be there, whether the polyhouse has been constructed or not, these kind of surveys. Once that thing is passed, the subsidy amount, suppose 25 lakh ka subsidy we availed and we have took the loan of 70 lakh suppose. So 70 lakh mein se or 50 lakh mein se 25 lakh ka subsidy amount will be minused automatically, and remaining 25 lakh we have to pay back to the bank. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. सर इसका ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है क्या? I think Chandan sir will be helping you on more on this question. हेलो, अगर आप ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें क्या है, ब्रीडिंग दैट मीन्स कि आप कोई सीड का वैरायटी निकालना चाह रहे हैं, राइट? यस सर, यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं. जो अपना
हाइड्रोपोनिक्स में यूज होते हैं, सीड्स यूज होते हैं, वो जैसे रिजवान हो गया या यूक्सिल है या एंजा का सीड है, वो भी प्रोटेक्टेड ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वैरायटी उन्होंने वो रिलीज करते हैं। सर इंटर्नशिप होता है सर? Yes, definitely. We provide you internships. We provide you trainings. We have different trainings. हमारा training होता है, एक 7 days training program will be there. You need to attend those things. If you don't have any hydroponic experience, आप वो 7 days का training you have to attend. Later on, we will have an interview. हम आपका interview लेंगे based on that 7 days knowledge only. 7 days में हमने जो सिखाया उसके बेसिस पे आपने क्या knowledge grab किया, that interview will be done. Once that interview is passed, we are open to help you with the thesis writing, RAVE writings, like 3 months internship, 1 month internship, 6 month internship also. Also, we are looking forward to involve the PhD program into Farming Web itself, so that you can cover your entire PhD from our company itself. This is which type of internship, paid or? It will be completely free of cost. You don't need to pay anything to us. The only payment charge will be for the training purpose. That 7 days training, it will be the charged one. Rest internship, it will be completely free. And obviously, if you are really good in those parameters, we will provide you the stipends also. The cost of the training, sir? It completely varies. Usually, it will be 3,000 rupees. For students, it will be Offline or 3,000. It will be on-site training. We have multiple locations where we can help you with the trainings. Currently, our Delhi farm in Delhi, we can say in Greater Noida, we can help you with the trainings. Along with that, we have training center in Pushkar, Alwar, and we are also looking forward to set a training center which will be active in month for Pune location also. Sir, near Bihar or Uttar Pradesh, any locations are there? Currently, we don't have those things, but we can provide you the training in Dehradun itself. Okay, sir. Nearest will be the Dehradun for you. सर क्या अलवर वाले फार्म पे मैं आपके फार्म पे दौरा कर सकता हूँ अपना एनएफटी लगाने से पहले या प्लानिंग करने से पहले? Definitely you can. क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, इसलिए. Okay, so आपके लिए काफी नियर बाय भी होगा. Along with that, आपके लिए बेटर चीज ये है कि we have 3 acre of farm which is under construction. Currently 1 acre is now construction is going on in Bilaspur location, Greater Noida area. Yes, so yes, you yes. can have a look of our under construction site also. कि आपको you will get to know what are the materials which we are using. What you can do, Yes. we will simply drop our contact numbers. You can reach us directly. Please. And we will work on these parameters. Right. Okay, thank you, sir. सर इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ेगा? You can visit to our website or else हम आपको numbers share कर देंगे. Mr. Chandan sir will share you the numbers, so you can directly contact us and we will work on the internship discussions. Okay, sir. सर इंटर्नशिप पेड होगी या फ्री? आपको कोई अमाउंट पे hello, नहीं sir. करना है इंटर्नशिप के लिए. ब्रॉड मतलब समराइज. Yes, go ahead. हाँ जी. सर आप एक मतलब समराइज मतलब एक बात कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है सर? मतलब अगर हम जैसे ओके, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हाइड्रोपोनिक्स को हम क्या लेवल तक ले जा सकते हैं, इनिशियल स्टार्ट कैसे करना चाहिए, दिस थिंग्स, राइट? न्यू स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी इस फील्ड में बस एंटर कर रहे हैं या सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उनका आगे जाके इसमें कौन ग्रोइंग प्रोसेस और प्रोसेसिंग प्रोसेस, उसके अलावा और कुछ है इस फील्ड में कि नहीं? हाँ जी, डेफिनेटली है. जैसे आई एम वर्किंग ऑन द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर लेवल, सो व्हाट वी डू, यू कैन सिंपली एंटर इनटू दिस डोमेन, जिसमें कि आपको पॉली हाउस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका क्लोजर्स, वो सब चीजें यू विल बी लर्निंग. अलॉन्ग विद दैट कंस्ट्रक्शंस का हमारे पास एक और डोमेन है. सेल्स एंड मार्केटिंग वी हैव द डोमेन. R&D we have the domain की जिसमें we can do the research and development on various different crops to reduce its production cost, these kind of things. Agronomy is also one more venture, we can have access to those things, right? The most important thing is that like currently in various different countries, various different universities or we can say organizations are planning to engulf that nanoparticles into hydroponics so that they can uplift their values.
ऑल्सो हाइड्रोपोनिक्स में अगर हम सेल्फ वी कैन से एग्री एंटरप्रेन्योर बन के अगर इसमें स्टेप इन करना चाहे, सो पोटेंशियल इज रियली सुपर्ब। द ओनली थिंग इज दैट कि हमें मार्केट डिमांड जानना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ग्रो द क्रॉप्स। एंड लैटर एक्सपांशन, अगर मैं लार्ज स्केल पे बोलूँ तो हम मेडिसिनल प्लांट्स वी कैन ग्रो इनटू हाइड्रोपोनिक्स। We can simply raise it using tissue culture. We can like have those saplings from tissue culture labs. We can raise it into tissue culture, then grow it into hydroponic systems and do the extractions and sell the medicinal extractions also. ओके, थैंक यू सर। सर एक और चीज़, जैसे कि अगर हम एज एन एग्रीप्रेन्योर, मतलब एग्री एंटरप्रेन्योर की तरह से अगर हम शुरू करना चाहें यही बिजनेस या एक तरह से स्टार्टअप करना चाहें, तो सर एक बेसिक से एज अ बिगिनर हम क्या कर सकते हैं? मीन एक स्मॉल, मतलब बिल्कुल बेस से बता दीजिए एक बार। ओके, डेफिनेटली कंसिडरिंग कि हमारा लोकेशन टियर 3 लोकेशन में है, टियर 3 लोकेशन हमारा सिटी है या कोई टाउन या गांव, ये लोकेशन से हम कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियोज हम काउंट कर पाएंगे, राइट। सो पहला इशू आएगा, पहला चीज हमें देखना होगा कि कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। एट इनिशियल अगर आप टियर 3 सिटी में हो तो अवॉइड स्टेपिंग इनटू लीफी क्रॉप्स, क्योंकि क्या होगा, एवरी समर द टेम्परेचर इज राइजिंग, सो स्टिल आप ग्रोथ तो कर लोगे उसे नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस की जगह फैन पैड बेस्ड पॉलीहाउस में, बट द इशू विच वी विल बी फेसिंग इज डिलीवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि जब हम उसको डिलीवर कर रहे हैं इनटू द मार्केट। अगर मैं दिल्ली से अराउंड 8 आवर्स के डिस्टेंस पे हूँ, सो एट दैट टाइम मुझे एवरीडे बेसिस पे इट विल बी हेक्टिक टू डिलीवर टू दिल्ली, राइट। प्लस एक्सट्रीम समर्स ड्यूरेशन में मुझे कोल्ड स्टोरेज व्हीकल लगेगा फॉर लीफी क्रॉप्स, एक्सक्लूसिवली आई एम टॉकिंग फॉर लीफी क्रॉप्स। वेयरएज अगर हम क्रॉप सिलेक्ट करने में गलती ना करें, हम बेल पेपर्स जैसे क्रॉप करें, अगर आपके पास मार्केट एक्सेस नहीं है या डिमांड्स उतनी पता नहीं है, यू कैन ब्लाइंडली गो विद बेल पेपर्स। डिमांड बहुत ज्यादा है। इफ आई टॉक अबाउट सप्लाई चेन, सिंस लास्ट 3 years एवरी समर एंड मॉनसून बेल पेपर आर सप्लाइड फ्रॉम बैंगलोर इटसेल्फ टू दिल्ली एंड कोटा, राजस्थान, महाराष्ट्र, एवरी लोकेशंस, राइट। सो हम बेल पेपर्स से स्टार्ट करेंगे। शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा है, वी कैन कैटर इट टू लॉन्गर डिस्टेंस। अब बेल पेपर्स से हमारा क्या हो जाएगा, या ऐसे कोई फ्रूटी वेजिटेबल से हमारे काफी अच्छे कनेक्ट्स बनेंगे होटल रेस्टोरेंट सेगमेंट्स में भी, प्लस सुपरमार्केट चेन्स में भी, राइट। ये एक चीज हो गई। अब इसके थ्रू हम उनका डिमांड जान सकते हैं कि उनको और क्या क्या चीजें चाहिए। लाइक वी कैन ग्रो माइक्रोग्रीन्स ऑल्सो, वी कैन ग्रो ऑर्किड्स लाइक वनीला वी कैन ग्रो, बट डिपेंड्स ऑन की डिमांड कितनी ज्यादा है और कौन व्यक्ति है जो खरीद रहा है। वो जब हमें पता चल जाए, हम उसका एक्सपांशन लेवल पे ले जा सकते हैं डेफिनेटली। ओके, प्राइसिंग सर सिनेरियो नोएडा वाले सेंटर का नंबर मिल सकता है? हाँ जी, डेफिनेटली आई विल बी पर्सनली अवेलेबल इन दिल्ली। सो यस, देयर आर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज। ग्रोइंग में करियर अपॉर्चुनिटी है, कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स में यू कैन फाइल एनी पेटेंट फॉर एनी पर्टिकुलर डिजाइंस, you can work on automation parameter if you have good hands on AI learning और IoT learning, तो आप automations में भी work कर सकते हैं। along with that आप business developments, joint ventures, ये सब चीजों में, finance, ये सब चीजों का भी आप growth कर सकते हैं। and growing is the thing which is always available at our point. So if you have any more questions, please let us know. We will definitely answer those things. सर बिलासपुर वाले सेंटर का नंबर दे दीजिए बस। ओके, बिलासपुर के लिए आप चंदन सर के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर और मैं, हम दोनों यहीं पे अभी बिलासपुर वाले लोकेशन पे ही है। सर विल ड्रॉप यू द आवर कांटेक्ट नंबर्स इन चैट बॉक्स इन दिस मीटिंग। ओके, सो यू कैन कांटेक्ट अस, रीच अस। करंटली हमारा महाराष्ट्र में कोई सपोर्ट नहीं है, बट हमारा एक फार्म है जो कि आळंदी लोकेशन में होगा इन पुणे। सो हम विद इन 15 to 20 days हम वो फार्म को हमारे अंडर में लेना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली इन 15-20 days यू कैन हैव अ ट्रेनिंग एट दैट लोकेशन आल्सो। ओके सर। राइट। आल्सो सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट हम हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर ग्रोथ फेज, कि जर्मिनेशन टाइम पे क्या देना है, हार्डनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन के लिए क्या देना है, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, ये सब फेजेस से रिलेटेड हम न्यूट्रिएंट भी आपको सप्लाई करेंगे। Sir, one question, sir. Yeah, definitely. Go ahead.
सर नैनो टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन कैसे आप लोग अभी कर रहे हैं या फिर आप ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका देखते हैं आप इन Right. हाइड्रोपोनिक्स? Right. In India, currently we are not practicing those things क्योंकि India में agriculture is not at much at that level कि we can utilize this gold and silver nanoparticles. Whereas in foreign universities, you can definitely get these opportunities to have like interaction of this nanoparticles in hydroponics. What those guys are basically doing, I will simply help you with the overview. So those guys are doing simply using these nanoparticles, basically gold particles or silver particles, to increase the nutrient uptake and to provide more resistance into those things. Also, if you are more lean toward the R&D part, so you can simply go into like seed technologies branch. Biotechnology is also a branch in which you can work on various different plants to grow them tissue culturally, and then utilizing like hardening and acclimatizing and growing it inside the hydroponic system itself. Because the major issue with tissue culture is really simple, कि वो plants will not survive in soil conditions. So we can simply exploit their potential in hydroponics rather than growing into soil. Yes, sir. Actually, I'm doing my degree BTech in biotechnology only, and Okay. I have done already training in nano sciences or in the nanotechnology. I have Okay. characterized some green nanoparticles. So, Okay. sir, in that sense only, I want to know कि अगर कोई इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इनकॉर्पोरेशन का और कहीं ऐसा काम हो रहा है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो या ऐसा इंटर्नशिप या कुछ ऐसा ट्रेनिंग देना. Definitely, we can work on this. You can simply connect us personally, and I will personally help you with like how we can work on your BTech Biotech's thesis writing and what are the research we can do with the available facilities and upcoming things which we can uplift. So basically, we can work on all the literature gaps also. ओके सर. सो आई एम हियर इन मेरठ सर. तो आपका जो नियरेस्ट फार्म होगा वो कहाँ होगा सर? इन Currently दिल्ली और in Delhi itself, right? Currently in Delhi itself, आपको दिल्ली में access मिल जाएगा. Greater Noida areas में. In Greater Noida, it's not exactly a Delhi. Being frank, it's a Greater Noida. Right. Near to Dankor, right? Near to Dankor, you can have the access to our existing farms where we are cultivating various different crops. Along with that, you can have visit of our under construction sites, and Alwar and Rajasthan, like Pushkar, these sites are always open for internship. Okay, sir. Okay, sir. Right. In fact, you can set up your own R&Ds for like getting your thesis cleared. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, hello, sir. Yes, hi. Sir, can you please explain me about something regarding the nutrient solution management? Okay. So Right. how you just managing the pH and everything like that only I just need to know, because like, for example, you have said it that part A solution, part B solution, some of the chemical compositions are there in that. So once you mix up with the kind of the main tank or something like the irrigation tank or something like that, how you are managing with it? For that I should know about it. Like one day you are just focusing on pH, EC and TDS or something like that, or any other than. Right. What we do, like as we are into this hydroponic growing since last 5-6 years, so till now we have calibrated our nutrient in max level, right? So currently there is no any deficiencies your plant will facing. So we don't work on managing the deficiency. But considering beginner level, you are planning to set your own nutrient composition. So what you will do, you will simply blend this part A and part B things, right? You will maintain its TDS and pH, and you will observe the plant. What are the deficiencies your plant will facing, right? And according to that, suppose if the leaves are turning yellow, so whatever the factor is responsible, you will simply add those things into the hydroponic nutrient in higher quantity, and somehow you will go for calibration method. I will show you the deficiencies photograph. Okay, so you can see like this, if the leaves are turning yellow, so it's nitrogen deficiency. Iron deficiency, if the bottom edge is getting yellowed and upper edge is getting greenish. Then zinc and molybdenum, these purple brown spots are zinc deficiency. So suppose your leaves have these spots on it, so you can simply add zinc into the nutrient and you can calibrate it. So these solutions, for example, exactly these compounds should be added, that you're saying, not the part A or part B solution. No, these things are nothing but the part A and part B only. We have placed it into different tanks. Yeah, got it. For example, what I'm just saying is,
Like for part A or part B, some of the nitrate solutions are there in that part A, and some of the micronutrients are there in the part B, like that. So if I'm Exactly. just adding the part B solution, it will not only increase the zinc, but also it increase the other compounds also. Right, definitely. It So will somehow hamper the different components. But at that point, what yeah, actually happens, your plant are not getting ample quantity of like boron or nitrogen, these kind of things. okay. So do you Right? think that these part A and part B solution is more than enough for a kind of hydroponic? Because once I found it out and searched it in the net now, like I just got a lot of solutions, like hydroponic solutions. Do you think Right. which will be a more good one or something like? Can you suggest something? Right. There are various different companies who sells this hydroponic nutrient. But the thing is that, like as I mentioned earlier, you can rely on only those companies who provide nutrient on growth phase wise, right? If for flowering phase, this will be the composition. For fruiting phase, this will be the composition. Because this nutrient uptake will be changed. So I suggest you can purchase any hydroponic nutrient, but make sure you purchase it by growth phase wise, so that these deficiencies issue will be not there. Or whereas if you're planning to set up your like own hydroponic recipe, suppose there is like we can say zinc deficiency, which falls under part B. So you will simply add zinc into part B and then circulate into the plant. Check whether the deficiency has been covered or not. If it is covered, good to go. If it is not, you have to add more. Okay, sir. And few of the things are done by the sprays itself, like the foliar sprays. So if there is any like kind of we can say deficiencies of any particular new things like calcium or boron, so somehow we go for foliar sprays, that is simply spraying it on the leaf or upper surface of the plant. Yes, I got it. Yes, sir. Thank you. Thank you. Also, if you want to discuss regarding our turnkey solutions or any finance part, what is the ROI projections and all these things, operational cost, these things, I can help you right away. And you can connect me later on. We will share our contact numbers. You can reach us and we will work on those parameters too. Like regarding setting up the hydroponic farms on turnkey solutions. In hydroponics, to control temperature, what we will do in Okay. summer? Okay. If I talk about naturally ventilated polyhouse, right, which has only partial control over to temperature and humidity. So in that case, we use this air circulation fans and foggers. We will be installing these air circulation fans and foggers so that whenever the temperature is going beyond or below set parameters, these things will turn on. This fogger will emit water droplets inside the polyhouse. ACF will circulate inside the farm, right? Inside the internal environment of the polyhouse. The very first thing. The other thing is that we will be using this aluminum shade net. So it will reflect the heat wave and only allow photon particle to pass through it. So whenever there is extreme sunlight, what we can do, we can simply relax it or we can open it. Okay. You can see these shade nets are currently open. Also, Chandan sir will be helping you with a better insight on this thing. सर हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि प्लांट को ग्रो करना है तो दो मेन कंपोनेंट आती है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जब प्लांट हम ग्रो करते हैं ना तो जो ये दो जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेंटेन करना, और ये एक दूसरे से मेंटेन होता है। आप समझो कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एक नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, वीपीडी होता है, वेपर प्रेशर डिपॉजिट। वो क्या है? वो है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए एक्चुअल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए। आप मान के चलिए कि हम राजस्थान में हैं जहाँ की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ कोई प्लांट जो है ग्रो नहीं कर सकते, बट क्या है कि वहाँ पे हमें टेम्परेचर ज्यादा है बट हम ह्यूमिडिटी से उसे मैनेज कर सकते हैं, हम वीपीडी लेवल को मैनेज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे प्लांट को जितना टेम्परेचर चाहिए अगर उतना नहीं मिल रहा है, सपोज दैट कि हमें प्लांट को 30 डिग्री टेम्परेचर देना है लेकिन वहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ के ह्यूमिडिटी को हम मैनेज करते हैं फॉगर्स से। जो हम फॉगर्स यूज कर रहे हैं उससे ह्यूमिडिटी क्रिएट करेंगे, ह्यूमिडिटी का लेवल मैनेज करेंगे। बढ़ाना है तो हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे,
दूसरी क्या है कि अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आप समझो कि आप पोरबंदर में कर रहे हो, तो वहाँ क्या जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे फिर टेम्परेचर पे कंट्रोल करते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए या फिर अप हो जाए। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है और उसको कितना ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? टेम्परेचर बढ़ाना है तो कर्टन रोल को हम नीचे कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हीट बढ़ जाती है, और वो मैक्स मैक्स लेवल होगा, वो मतलब नेचुरली होगा, उसमें कोई हीट हम अलग से प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके सर। तो सारा चीज कैलकुलेटिव फॉर्म में होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्लांट को कितना टेम्परेचर चाहिए और पर्टिकुलर फेज पे कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं। आप समझो कि अगर फ्लावरिंग स्टेज पे हमारा क्रॉप है और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, तो फिर फ्लावर ड्रॉप होने का भी चांसेस रहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अलग अलग फेज पे थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, तो हम उसको मैनेज करते हैं, चाहे वो कर्टन से हो, चाहे वो एसीएफ चला के हो, एयर सर्कुलेशन फैन हो, चाहे हम फॉगर से कर रहे हो। ये सारा एक इक्विपमेंट्स है जहाँ से हम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं पॉली हाउस के अंदर। और एक थिंग क्या है कि जैसे हम प्लांट पॉली हाउस लगा रहे हैं, उसका क्या मेन रीजन होता है कि हम CO2 को भी ट्रैप करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि दिन के टाइम पे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो ये सुबह के टाइम पे आपका फोटोसिंथेसिस होगा। देन जब नाइट होगा, तो नाइट में क्या होता है कि रेस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि CO2 रिलीज होती है, O2 कंज्यूम होती है। तो CO2 रिलीज जो होगा, वो क्या होगा कि सुबह के टाइम पे जब सनलाइट मिलेगा, तो वो CO2 यूज कर लेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस में। तो यही साइकिल चलता रहता है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन है वो पॉली हाउस के अंदर बढ़ जाता है। और कोई क्वेश्चन हो? Any other question? एक पीएच डाउन और पीएच अप का एक क्वेश्चन था। उसमें क्या था कि पीएच डाउन हम करते हैं जो, या फिर नाइट्रिक एसिड, मतलब कोई भी एसिड हो जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो, मतलब प्लांट को नुकसान ना करे, उसका एक लेवल होता है। तो या तो नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं डाउन करने के लिए। अप करने के लिए हम कास्टिक पोटाश यूज कर सकते हैं। सर इसको देने का पैरामीटर, क्वांटिटी और सावधानी सिंपली कैसे अगर आप बरतेंगे क्या? सिंपली अगर आप मैनुअल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे नाइट्रिक एसिड है, उसका आपने 10% का सॉल्यूशन बना लिया एक टैंक में, और जब आप चेक करते हैं पीएच को, वहां पे अगर लग रहा है कि पीएच ज्यादा है, तो आप मैनुअली 1 लीटर, हाफ लीटर उसमें ऐड करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका जो मिक्सिंग टैंक है वो कितना बड़ा है, कितने कैपेसिटी का है। यदि 200 लीटर का है तो? अगर 200 लीटर का है, तो आप पहले 100 ml डाल के उसको चेक करेंगे कि, क्योंकि आप मैनुअल कर रहे हैं, तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा कि 100 ml आपने डाल के देखा कि पीएच कितना कितना डाउन हुआ, मैनेज हुआ या नहीं हुआ। तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा सर, अगर मैनुअली कर रहे हैं तो। अगर ऑटोमेशन लगा है तो फिर कोई इशू नहीं है, वो खुद ही आपको मैनेज करके दे देगा। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कंसंट्रेशन आपको एक्चुअल पता नहीं है कि जो हम डाल रहे हैं उसका पीएच कितना है। वो आप मीटर से चेक भी नहीं कर सकते। अगर आप उसका मीटर से चेक करेंगे तो मीटर खराब होने का चांसेस रहते हैं। अच्छा जी ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू। Any other question? Also, we have one more question from Dr. Tanya, that can we grow blueberries, avocados, these kind of crops inside the hydroponics? So yes, definitely we can grow, but at that time, what issue we will be facing? Issue will be something like that, कि the operational cost, right?
because this blueberries, these are not the plants, these are kind of trees, we can say. In simple words, these are the larger, these have really higher crop cycle beyond like 2 years, 3 years. So at that time, maintaining and providing the operational cost is the hectic challenge at initial go, right? Because somehow we have to pay the agronomist salary, labor salary, then miscellaneous maintenance, nutrition cost, electricity cost, packaging cost, like various different costs will be involved. So considering that, initially it will be hectic to just simply start with blueberries. But definitely we can grow any crop in hydroponics. सर अवाकाडो कैसे होएगा सर? उसका तो प्लांट कैनोपी बहुत हायर है और इसीलिए तो नहीं करते हैं ना सर हाइड्रोपोनिक्स में। मतलब प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि प्लांट ग्रो कैसे होता है सर? प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो रूट सिस्टम के लिए हम उसको कोकोपीट एक प्रोवाइड करते हैं रूट सिस्टम उसका बनने के लिए, और न्यूट्रिएंट हम अलग से प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम ग्रो कोई भी प्लांट को कर सकते हैं, बट वो वहां पे स्टेबल हो, मतलब सुटेबल हो। सर अच्छे ब्लूबेरी के प्लांट, माफ कीजिए मैं थोड़ा सा हो सकता है टॉपिक से अलग बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ ब्लूबेरी के प्लांट चाहिए। क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा वैरायटी नॉर्थ में? क्योंकि मैं, आपका फार्म अलवर में है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे इस वेदर कंडीशन के हिसाब से और मैनेजमेंट के हिसाब से जो हम कर पाए ओपन में या नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस में, तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा वैरायटी और कैसे क्या करना सही ठीक है? कुछ ट्राई करके देखूं तो 10-15 प्लांट ऐसा। बिल्कुल सर, आपको हम सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि मैं तो ब्लूबेरीज पे इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ पॉली हाउस के अंदर। अगर आपको ओपन में करना है तो आप कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली प्रोवाइड नेम ऑफ वेराइटीज, प्लांट्स अवेलेबल, नेम ऑफ वेंडर, वैरायटी एंड प्लांट सपोर्ट एंड एग्रोनॉमी सपोर्ट। प्लीज, थैंक यू सर। आप कनेक्ट करिए सर, मैं आपको सारा चीज बता दूंगा। हाँ, मैं करता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? सर वन लास्ट क्वेश्चन, मतलब अगर हो सकता है शायद ये भी आउट ऑफ द टॉपिक जाए, बट जैसे अगर आपके कंपनी से या फार्म से मुझे मतलब कोई एक पॉली हाउस बनवाने के लिए आपसे वो करना पड़े कोलैब, तो मतलब क्या बन सकता है या क्या प्रोसेस रहेगा बताइए। डेफिनेटली हम आपको टर्न की सॉल्यूशंस में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हम आपका पॉली हाउस भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑटोमेशन भी हम सेट करके देंगे, इक्विपमेंट एसेसरीज वी विल बी इंस्टॉलिंग, देन एग्रोनॉमी सपोर्ट भी हम आपको देंगे, ऑन ग्राउंड एग्रोनॉमिस्ट प्लस वर्चुअल एग्रोनॉमी, बोथ द थिंग्स, कंस्ट्रक्शन, ग्रोइंग एंड मार्केटिंग लिंकेज भी हम प्रोवाइड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम आपको हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट, इफ यू वांट वी विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू विद हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड इनटू द फार्म आल्सो। तो लाइक जैसे अभी आपने कहा कि आपका यूपी बिहार साइड कोई फार्म या ऑफिस नहीं है, तो मतलब मैं यूपी से हूँ, तो अगर इधर आपका मतलब यूपी में आपको धनकौर लोकेशन विल बी प्रेफर्ड। आप धनकौर लोकेशन पे आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे फार्म्स भी है, सो हम आपको पर्सनली हमारे फार्म टूर्स भी कराएंगे। along with that we can have a sit in our office and we can discuss on financial parts कि हम कैसे इसको कैश फ्लो रखना है, everything, how we will be availing the subsidies and process क्या होगा, all these things we will take everything, so you don't need to worry about कि subsidy approve होगा नहीं होगा कैसे होगा, just bank interaction will be from your end, rest everything we will take care of it. Okay, thank you sir, I'll contact you. Definitely. Okay, thank you sir. Most welcome. Okay, any other question? No ma'am, no. No ma'am. Okay, so we conclude today's session. Okay, definitely. Okay, thank you so much sir. Thank you sir, thank you ma'am. Thank you so much sir, and all the participants for your thoughtful questions. Thank you so much.